عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہی جیسا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. تو ابھی جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محفل میں آتے ہیں، ہے نا، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، کوئی یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہر جگہ ہے. تو یہ کہاں تک بات صحیح ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو وصال کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائی جو جسمانی زندگی ہے، جیسے دنیاوی زندگی تھی. جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے ہم کہیں. وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا. اس لیے کہ انبیاء اکرام کی روح جب نکالی گئی تو ایک تو پرمیشن کے ساتھ، ہمارے روح نکالنے کے لیے فرشتہ پرمیشن نہیں لیتا، نبیوں کی روح مبارک نکالنے کے لیے پرمیشن لیتا ہے فرشتہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح نکالنے کے بعد رکھا کہاں جائے؟ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں واضح طور سے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کی ارواح قبض کرنے کے بعد واپس اس کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کفار کی روح سجین میں رہتی ہے، اور کچھ یمن میں ایک کنواں ہے، وہاں کچھ کفار کی روح رہتی ہے، کچھ زمین کے نچلے طبقے میں، اور مسلمان کی روح کچھ ان کے قبروں کے پاس، کچھ نیک روح ہے آسمانوں تک، کچھ زمزم میں، کچھ عرش تک جاتی ہے، کچھ جنت میں گھوم کے آتی ہے جیسے شہداء کی روح ہے. تو اب جنت نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی، تو نبی کی روح جنت میں کیسے رکھے؟ آسمان بھی نبی کے صدقے میں پیدا ہوا، تو نبی کی روح آسمان میں کیسے رکھے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو کوئی ایسی جگہ بہتر نہیں جو نبی کے جسم سے بہتر ہو. اس لیے انبیاء کرام کی ارواح واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. دیٹ مینس they are physically alive in their graves. اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ وہ قبروں میں زندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اچھا، تو یہ قرآن سے مجھے ثابت کر دیجیے کہ یہ آپ پہلے یہ ثابت کر واپس جاتی ہیں. وہی تو میں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ امام تقی الدین سبکی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام پڑھ لیجئے، محدث شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھ لیجئے. ان سب میں آپ کو یہ حدیث کلیئر کٹ مل جائے گا. اور امام بیہقی کی کتاب جو دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اردو میں، حیات الانبیاء، اس میں بھی یہ سب حدیثیں موجود ہیں. اور امام بیہقی جانتے ہوں گے امام بخاری سے پہلے کے جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں جیسا آپ نے سجین اور کیا اور ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ سجینوں میں ڈال دی جاتی ہے جو وہ رہتے ہیں جو جنتی اور جہنمی جو ہے نا. تو پھر ادھر پہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کچھ روحیں ادھر حدیث میں نیچے، حدیث میں جو قرآن جو بول رہا ہے ہم کو قرآن کی گارنٹی ہے نا. میرے بھائی حدیث تو ہے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم کو حدیث وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ میری بات سنیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، اطیع الرسول ہے نا. اچھا، اطیع الرسول جب ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک حدیث نہیں پڑھو گے کیسے عمل کرو گے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا، سارے آرڈر دیا اللہ تعالیٰ. مجھے بتائیے یہ قرآن ہے کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی قرآن ہے کیا کہ کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا. یہ قرآن ہی ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے پتہ چلا؟ پڑھنے سے پتہ چلا. آپ کو پڑھنے سے کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیا گارنٹی کہ یہی قرآن ہے؟ بالکل، کیونکہ وہ ترجمہ کیا ہے نا، آپ جیسے عالموں نے کیا نا ترجمہ، میرے بھائی پتہ چل رہا ہے نا کہ قرآن ہے بول کے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی صرف قرآن کی بات مانیں گے، نہیں ایسا نہیں کہا میں نے. قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں گے. صحیح حدیث کی بات مانیں گے، قرآن اور حدیث صحیح حدیث کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اب قرآن یہ اصل میں قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آپ نہیں، آپ بولے گا چلیے آپ بتائیے، مجھے نہیں پتہ. اسی کو قرآن مانیں. اتنی سمپل سی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت ہے، یہ تو حدیث پہ عمل کرنا ہوا. لیکن ابھی آپ کے تھرو ہم کو پتہ چلے گا نا عالم لوگوں. ابھی تو نبی نہیں، ابھی تو نبی کو گزر کے کتنا وقت ہو گیا نا، آپ نے جو یہ ابھی جو نبی کہا کا دور چل رہا آپ ہے. نے یہ جو کہا نا کہ قرآن ہی گارنٹیڈ ہے، بالکل تو یہ قرآن گارنٹی بنی نبی کی مبارک زبان سے. نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور نبی کہہ رہے کہ یہ میری حدیث، اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو نبی آپ سمجھے میری بات کو؟ نہیں تو میرے نبی نے یہ بھی تو کہہ کے گئے کہ میرے بعد لوگ میری باتوں کو پیش کریں گے، تو تم میری باتوں کو کیسے جانچو گے؟ میں نے کہا ہے کہ قرآن سے جانچ لو نا، اگر قرآن سے مل جائے گی تو لے لینا، اور قرآن سے نہیں ملے گی تو سمجھنا میں نے نہیں کہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں، اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی کیا دے رہا ہے؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نبی ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اسے جو ہم کہتے ہیں وہی کہتا ہے. اللہ بول رہا ہے ABCD اور نبی بولیں گے ZXY جو حدیث میں مل رہا ہے، تو میں مانوں ہاں یا نہ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟
کیونکہ اللہ اے بی سی بول رہا ہے اور نبی ازرائیل ایکس وائی زیڈ بولیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ بتائیے نا، کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے نا، آپ سمجھیے نا بات کو. بھائی سنیے، اختلاف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری عقلیں کمزور ہیں. اچھا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کو بھر دوں، کیا ہم اور آپ بھر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھرنے کے لیے علم تھا حضرت علی کو. اچھا، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی. سب کا علم برابر نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف، عمر فاروق کا علم ایک طرف، وہ وزن ہی رہے گا. سب کا علم برابر رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری جتنی کیپیسٹی ہو اتنی ہم سے. اگر ہماری نظر میں کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے. قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو اسی لیے محدثین کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا، واقعی کیا بول رہے ہیں کہ بھائی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. مرنے کا کس کو انکار ہے؟ ہاں، سوال یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ شہیدوں کو، شہداؤں کو آپ مردہ مت کہو. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے نا. تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ انبیاؤں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی زندہ ہے، ہمارا بھی یہ ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ادھر آگے کیا بول رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس روزی بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں، کس طرح عیش و آرام میں لگ رہے ہیں. تو یہ متشابہات ہو گئی. تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ دنیا میں سب گھوم رہے ہیں، سب جگہ یہ آپ سوچیے نا. یہ متشابہت کیسے ہو گئی؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے. ہاں بتائیے. اچھا، کس طرح زندہ ہے؟ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے زندہ ہے. قرآن میں جب ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے پڑے کیوں؟ تو میں تو نہیں پڑھا ہوں، آپ ہی بتا رہے ہو. تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو کیوں پڑے ہو؟ کیوں پڑے؟ اللہ نے ان کو ایسی زندگی دی جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اچھا مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ، قبر کی زندگی جو ہے نا، عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ایسا جیسے ماں کا پیٹ. ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے. اب عالم برزخ کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا، ٹھیک ہے. اب یہ پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ماں کے یعنی عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وسیع جگہ پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس طرح عالم برزخ مومن جو ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو تنگ جگہ سے وسیع میدان میں آ گیا. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ. آپ نہیں مانو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے. اسی طرح کے اقوال بخاری مانیں گے، مان رہے ہو نا؟ لیکن آپ جیسا بول رہے ہیں غوث اعظم کی بات نہیں مانیں گے نا، اس لیے میں نے کہا برا نہیں ماننا. بات پوری سنو. یہ ہم ہیلدی ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں، ہم بھی ہیلدی ڈسکشن تاکہ کیا ہے کہ دلوں میں رنجش نہیں رہے. بھلے آپ اپنے عقیدے پہ رہو، بھلے میں اپنے عقیدے پہ رہوں، یہ ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. سنی ہے یہ حدیث آپ نے؟ نہیں سنی. آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کو سنا، آپ کو ریفرنس دے دیں گے انشاءاللہ. جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. اب پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے نبی یعنی پوری دنیا کو ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ پوری دنیا اس دنیا میں رہ کر ہتھیلی کی طرح ہے. اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے پیٹ کی طرح ہو گئی تو اور کتنی چھوٹی ہو جائے گی. تو نبی اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب آپ کا کہنا کہ ہر جگہ پہنچنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں جب پوری چیز ان کے سامنے تو پھر جب موجود تو پھر وہی تو پھر کیوں بولنا کہ بھائی ہمارے محفل میں آ رہے ہیں، یہاں پہ محفل چل رہی ہے، یہاں بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ سب جگہ ایک ساتھ ہوتی ہے نا ساری چیزیں. کسی مستند عالم دین سے آپ نے یہ سنا کہ نبی یہاں موجود ہے؟ سنا نا بابا. کون عالم ہے؟ کوئی ایسا عالم بتا دو، مستند عالم جن کا ایک مقام ہو، وہ یہ کہے کہ نبی یہاں موجود آئے ہیں میری محفل میں، یہ بتا دو. ہم ان سے ڈسکس کریں گے. آپ نہیں کسی کی بات کو سن کے مت کہو بھائی. نہیں تو میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں بہت اچھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات بول رہے ہو. لیکن کیا ہے
کہ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سن رہے تو مطلب کہاں سے یہ بات پھیل کہاں سے رہی ہے؟ اور یہ جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے، کنفیوز ہیں کہ بھائی کیا ہے. آپ ہمارے پاس آئیے نا، ہم سمجھاتے ہیں نا. جیسے آپ آئے نا ہمیں خوشی ہوئی. آپ کو جو نا ایسی کوئی عوام میں بات آئے نا اس کو لے کے آپ اچھالیے مت. نہیں اچھال نہیں رہے سننی ایسا. ارے پہلے کسی اچھے عالم سے ملاقات کریں. ہم کسی دوسرے کو کیوں غلط بولے جب ہم خود ہی اصلاح پہ ہیں ہوں گے تب ہم دوسرے کو. وہی میں کہہ رہا ہوں. ابھی آپ نے میرے سامنے آ کے بولا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نبی اس محفل میں کھانا کھانے کے لیے آئے. کون ایسا کہتا ہے؟ ایسا کہنے والا کوئی مستند عالم بتاؤ. ہاں نبی تشریف لانا چاہے تو ضرور لا سکتے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ابھی ابھی یہاں آئے ہیں، یہ کوئی مستند عالم سے بتا دو. اس پہ کوئی عالم اس طرح نہیں. بات وہی آتی ہے نا. دیکھیے مطلب نبی آ سکتے ہیں، اسی کے اوپر تو ہم کو اعتراض ہے. اعتراض کرنے کے لیے آپ کو یا تو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی. ہاں تو قرآن سے تو ہم دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے بولے آپ اس ٹو میں کیوں لگے کہ ہم انہیں کس طرح رکھ رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ٹو میں تو آپ لگے ہوئے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہیں. وہ اپنی تبریز بھائی اب قرآن سے پہلے بتائیے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، کون سی دلیل آپ نے دی؟ یہ بتایا نا آپ کو. آیت پڑھو آیت. کون سی آیت؟ ہاں کہ شہیدوں کو آپ مردہ مت کہو، ہے نا. وہی بتایا. تو آپ نے بولا آپ لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ہم شعور، آپ شعور بتا رہے ہیں نا مجھے کہ وہ قبروں میں برابر زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں. وہ تو قرآن اللہ نے فرما دیا نا بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے نزدیک حیات ہیں. تو اس میں اور تفصیل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نزدیک نا. میری بات سن رہے ہیں؟ تو ہم کیا دوسروں کے نزدیک حیات ہیں؟ ہمیں بھی تو اللہ نے حیات دی ہے. نہیں ابھی ہماری یہ جو بات ہو رہی نبی سن رہے کیا؟ آپ یہ بتائیے. بالکل سن رہے. اچھا اگر نہیں سن رہے تو آپ مجھے دلیل دو. نبی نہیں سنتے، ہم دلیل دیتے. ہاں میں بتاتا ہوں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں گے کہ جب 4 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس میں 5واں اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو اپنا کیا بولتا ہے اگر 6 لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں یا 6 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں 7واں اللہ ہوتا ہے. تو یہ آیت برابر تشریح کر رہی ہے کہ کتنے بھی لوگ آ جائیں، 100 آ جائیں، 200 آ جائیں، اس میں ایک اور ایڈیشن کون ہوگا؟ اللہ ہوگا جو ساری ہماری باتیں سن رہا ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن میرا عقیدہ ہے اللہ کے سوا، ہم لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں سن رہا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. تو اس کو اب وہ جو آیت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، بے شک. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی کو سننے کی طاقت نہیں دی. کیا یہ ثابت ہوتا ہے اس سے؟ نہیں آپ مجھے بتائیے. آپ خود آپ ماشاءاللہ اتنے عالم ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو یہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں کچھ زیادہ ہی اس میں جانوں؟ جس طرح آپ بول رہے ہو کہ تم اس ٹو میں کیوں لگے ہوئے ہو، تو ٹو میں آپ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی نبی نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ یہ بتائیے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا کہ 5 میں چھٹا اللہ سنتا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی نہیں سن سکتا؟ ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی سن رہے ہیں. نبی کے سننے والی حدیثیں ہم بتاتے ہیں. حدیث ہے دیکھا، قرآن بھی بتاتے ہیں. ہم آ رہے ہیں قرآن کے باہر. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سے ثابت کہ اللہ بول رہا ہے کہ اے نبی اگر اس قرآن سے تم ہٹے تو سمجھو گئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت پہ آئیے. ہاں سورہ احزاب. اس سے پہلے آئیے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم لوگوں کی اپنی رگ شہ سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک ہے نا. اللہ نے فرمایا نا. بے شک. یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے جان سے بھی زیادہ. سبحان اللہ. اب کس طرح لے میں آپ بتائیے. چلیے میں سمجھ گیا شاید نبی اولا. آپ نے کیا سمجھا اس؟ میں نے یہ سمجھا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر نبی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا نبی کے خلاف کوئی اگر کوئی بھی وہ انسلٹ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو تم کو فوراً اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. تو اگر تم ان کے لیے جان بھی دے دو تو وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ نبی تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا احسان ہے، انہوں نے اتنی ساری قربانیاں دی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ زیادہ حق رکھتے ہیں. بہت اچھا لگا، آپ پڑھے لکھے ہو، اچھا لگا مجھے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے لقد جاءکم رسول من انفسکم میں جو اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی کو گراں گزرتا ہے. تو ہماری تکلیف نبی کو گراں گزرنے کے لیے نبی کو پتہ نہیں تو کیسے گراں گزرتا؟ نہیں مشقت کا مطلب کیا ہے پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اے نبی ان کا ایمان لانا اگر تمہیں اتنا آپ صبر کریے، ٹھیک ہے نا. ان کا ایمان لانا آپ کو بہت ہی تکلیف دے رہا ہے نا، تو آپ صبر کریے، ٹھیک ہے نا. نہیں لانا. ہاں ایمان نہ لانا. عزیز علیہ ما عنتم، تو کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے؟ سورہ کہف میں یہ کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. میں نے النبی اولا پڑھا تو آپ نے جواب دے دیا. اب میری دوسری آیت کا جواب دو نا. ہاں بتائیے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. مسلمانوں کا، لوگوں کا تکلیف میں پڑنا نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی بھلائی کے زیادہ چاہنے والے نبی، ٹھیک ہے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے لیے مہربان، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی. مجھے بتائیے رحمت کیسے کریں گے؟
रहमत कैसे करेंगे? वो आयत मगर प्रेजेंट कॉन्टेक्ट के लिए, जिस टाइम नबी हयात थे उस टाइम के लिए। तो वो दलील दिखा दो कि ये आयत उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल तो है नहीं, बिल मुमिनीना का लिखा है ना, बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, तमाम मुसलमानों के लिए रऊफ रहीम। मुसलमान का इतलाक, तो इसका मतलब अगर प्रेजेंट है तो आप मुसलमान नहीं कहला सकते अपने आप को। अगर आप मुसलमान कलमा पढ़ते तो आप मोमिन हुए कि नहीं? तो मोमिन है तो नबी हमारे लिए रहमत हुए कि नहीं? है ना? तो ये तो कुरान एप्लीकेबल हुआ। कुरान तो खुद बोल रहा है ना, रहमतुल आलिम बना के भेजे गए हैं। तो रहमतुल आलमीन में भी सब आ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल सब आ गए। हम भी आ गए। अगर नबी नहीं सुन सकते तो रहमतुल आलमीन का अल्लाह ने क्यों फरमा दिया कुरान में? सुनने का कोई थोड़ी है, इसलिए फरमाया सुनने का कॉन्टेक्स्ट भाई अल्लाह ने फरमाया बात को समझो। एक जगह पे बात हो रही है, हंसने की बात कोई नहीं है भाई। नहीं हंसने की बात नहीं, क्या हो उन्होंने कुछ बोला, हाँ इन्होंने बोला, हाँ ऐसा नहीं। चलो हम दोनों को डिस्कस करने दो। ये अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों के लिए रऊफ रहीम और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में तमाम आलमीन के लिए रहमत। मुझे बताइए, एक आदमी ना हमारी बात सुन सके ना समझ सके इंतकाल के बाद, तो आलमीन का लफ्ज अल्लाह ने डाल के क्या गलत किया? माज़अल्लाह, क्या अल्लाह पर ब्लेम करते हो? रहमत का मतलब क्या है? रहमत करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि मैं आपकी ज़बान को समझूं। अगर आप अरबी बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे अरबी नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आपकी ज़बान समझूंगा नहीं, कैसे आप पर रहमत करूँगा? हाँ सही बात, नहीं कर सकता। अच्छा, ज़बान मैं समझ लिया, लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ताकत मेरे पास नहीं है, कैसे मदद करूँगा? लेकिन आप लोगों का तो कहना ना कि अल्लाह के रसूल हम गायब जानते हैं। हाँ, अभी इससे ये हमारा कहना नहीं है, अल्लाह का कहना है। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, अल्लाह का कहना है। आप इसको इनकार कर जबान में क्यों फिर आप डिफरेंस कर रहे हैं कि वो अगर अरबी नहीं आती तो फिर अरबी नहीं, तो मैं हमारी आपकी बात कर रहा हूँ। जब आदमी गैब समझ सकता है ना कोई, हाँ। तो फिर सब कुछ समझ सकता है। तो वही तो मैं कहने जा रहा हूँ हाँ। कि रहमत करने के लिए जबान बीच में वो नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब अरे भाई, मैं नबी की यहाँ बात समझाने के लिए अपनी बात कर रहा हूँ। जी। अगर मैं आपको मदद करना चाहूँ तो आपकी तकलीफ को समझे बगैर कैसे मदद करूंगा? मैं रहमत नहीं कर सकता। जबान समझ लिया लेकिन मैं आपसे दूर हूँ, अगर आप तक पहुँचने की ताकत नहीं तो कैसे मदद करूंगा? अच्छा, पहुंचने की भी ताकत है लेकिन मैं जिंदा ही नहीं हूँ, कैसे मदद करूंगा? जब अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना दिया तो इसका मतलब नबी को अल्लाह ने मौत के बाद जिंदगी भी बख्शी है, तमाम उलूम भी अता फरमाए, मदद करने की ताकत भी अता फरमाए, दूर तक पहुंचने की ताकत भी अता फरमाए। अगर नहीं तो रहमत का मतलब क्या हुआ? तो क्या अल्लाह को हम ब्लेम करते हैं कि अल्लाह ने नबी को रहमत बनाकर गलत कर दिया? आप रहमत का मतलब इस तरह ले रहे हैं कि भाई किस तरह ले रहे हैं? आप बता दो। रहमत अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, इसीलिए भेजा ताकि इनको सही रास्ता बताएं, तो रास्ता बता दिया ना। और अल्लाह जिस तरह आपने बोले ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यही है, कुरान किस तरह समझा, तो यही रहमत है कि कुरान नबी के ऊपर उतार दिया, अब इसका प्रोटेक्शन भी हो गया, इसमें कोई चूचरा नहीं हो सकता, तो अब इसको पढ़ो और इसके ऊपर अमल करो। अच्छा, तो सिंपल बात है। कुरान में अल्लाह ने ये क्यों नहीं लिखा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फी हाज़ा ज़मान? अब इस जमाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन, इसके बाद वाले आने के लिए आप रहमत नहीं, ये तो नहीं फरमाया अल्लाह ने। तो इसलिए जमाना नहीं लिखा ना अल्लाह ताला ने, तो नहीं लिखा तो मतलब सबके लिए आ गया, क़यामत तक के लिए ना, क़यामत तक के लिए रहमत, पर्टिकुलर क़यामत तक रहमत होने के लिए जिंदगी होना जरूरी है ना। और वो जिंदगी को मैं तो फिर मतलब आप जो औहदे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहूंगा दूंगा, तो इससे मतलब आपने अल्लाह ताला को तो रिटायर ही कर दिया। क्यों है क्या ना? क्यों कैसे रिटायर? नाउजुबिल्लाह, क्यों? क्योंकि सारे काम तो नबी से हो रहे हैं, तो फिर अल्लाह की क्या जरूरत है? भाई अल्लाह ही ने फरिश्तों से काम। अच्छा, क्या अल्लाह ताला डायरेक्ट अमल हमको जन्नत जहन्नम में भेज नहीं सकता? डायरेक्ट बिल्कुल करता है, तो फैसला हो चुका है, नबी ने कह दिया है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्यों फरिश्ते लिखते हैं? क्या अल्लाह को पता नहीं फरिश्ते लिख के भेजेंगे तब हमारे लिए? तो जब साहबा ने पूछा कि जब ये फैसला हो चुका है क्या अमल करते, तो नबी ने क्या कहा कि आप अमल करते रहो, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने ड्यूटी सौंपी है कि नहीं? सौंपी है। बारिश बरसने की ड्यूटी सौंपी है कि नहीं? रोजी की सौंपी है कि नहीं? जब सौंपी है तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह फारिग हो गया इसलिए फरिश्तों को सौंप दिया? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं तो आप मैं यही बात हमने नबी की कही तो कह रहे हो कि अल्लाह फारिग हो गया? अजीब सी बातें कर रहे हैं। अजीब सी बात नहीं, जब मैं अगर दुआ मांगू तो मैं क्या करूं? मैं या रसूल अल्लाह मदद बोलूं कि या अल्लाह मदद बोलूं? आप बताइए। एक टॉपिक नहीं, टॉपिक हमारा पहला टॉपिक ये है कि नबी हयात है कि नहीं। डोंट चेंज द टॉपिक। हाँ, तो हमने मदद के लिए आ रहे, आपकी बात मैंने समझ गया पूरी तरह से, नबी मदद को आ सकते हैं, पहले आप ये साबित करो कि नबी जिंदा नहीं है। है ना साबित? क्या अल्लाह ताला बोल रहा है ना सूरह जुमर में, नबी के लिए क्या है नबी तुम्हें भी मरना ही नहीं, मरना तो इंतकाल हो चुका है। हाँ, अरे मरने का इनकार किसने किया? अच्छा, कभी मरेंगे मतलब सब एक साथ? मेरी बात सुनो, कुरान में कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या मतलब हुआ? हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। बस मौत का मजा चखना है। दोबारा कहिए। मौत का मजा चखना है। चखना है। हाँ। चखने के लिए आदमी अगर जिंदा नया रहे तो चखेगा कैसे?
تو زندے تھے نا تو چک لیے نا ارے تو انتقال کر گئے نا اور کیا اس میں کیا چینج ارے بنتا ہے؟ سمجھو یار قرآن کو سمجھو. اچھا سمجھائیے آپ سمجھائیے. کلو نفسن ہر نفس کو کیا مطلب ہر روح کو ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بالکل روح موت کا مزہ میں نے اگر پانی کا گلاس منہ میں رکھ کے مر گیا تو چکھنا کیسے پایا گیا؟ ٹیسٹ پانے کے لیے مجھے زندہ رہنا ضروری ہے کہ نہیں؟ سمجھا نہیں آپ کی بات نہیں سمجھے اس لیے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو لمیٹڈ کر لیا ہے. نو ناٹ لمیٹڈ. لیٹ می ایکسپلین یو. اگر لمیٹڈ ہوتا یہاں بیٹھا میں نے ابھی لائم کا جوس پیا اس کا ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے چکھنے کے لیے میں ابھی زندہ ہوں تبھی اس کا ٹیسٹ بتا سکتا ہوں. اگر منہ میں رکھتے ہی مر گیا تو کیسے ٹیسٹ بتاؤں گا؟ بتا سکتے. سوال کا جواب دیجیے. اگر میں فوراً مر گیا تو ٹیسٹ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا. تو اس کا مطلب آپ کے حساب سے چکھنا موت کو چکھنا ہے مجھے پوری کرنے دو. جتنے بھی اگر مر رہے ہیں اگر میں مرتا ہوں آپس میں بات کرنے لگے. اللہ نے فرمایا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کا مزہ چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے. اچھا اگر آپ کہیں گے کہ موت سے آدمی ختم ہو جاتا ہے تو چکھنا نہیں پائے گا. آپ خود قرآن کے خلاف جا رہے ہو. سمجھے؟ آیت کو دوبارہ پڑھو. کلو نفسن ہر روح کو ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے کے لیے روح کا باقی رہنا ضروری ہے اور روح کو فنا نہیں ہے. کیوں فنا نہیں ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا یسألونک عن الروح. اے نبی روح اللہ نے فرمایا نبی آپ کے پاس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی. روح اللہ کے حکم سے ہے اور اللہ کے حکم کو موت نہیں ہے فنا نہیں ہے. اللہ کے امر کو فنا نہیں ہے. تو روح کا باقی رہنا یہاں پہ یہ بولا گیا ہے کہ روح جو ہے پہلے پوری کر لیجیے. میری بات پوری کرنے دیجیے. روح کا باقی رہنا ضروری اور روح کو فنا نہیں. اب موت کا مطلب یہ ہوا روح کا جسم سے الگ ہونا. بالکل ٹھیک ہے نا. جسم کو موت آتی ہے روح کو موت نہیں آتی. روح موت کا مزہ چکھتی ہے. اسی لیے میں نے شروع میں بتایا امام بیہقی کی حدیث سے اور دوسری حدیث کتابوں کا نام بھی میں نے لیا. جذب القلوب لیا اور شفاء السقام لیا. اسی طرح امام بیہقی کی کتاب کا نام لیا. ان تمام حدیثوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی روحیں واپس ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے. موت کا نام ہے سپریشن آف دی روح فرام دی باڈی. اور نبیوں کی روحوں کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہی دوبارہ دنیاوی زندگی ہو گئی جو ہمارے شعور سے باہر ہے. اچھا ایک شہید اس کی زندگی آپ شعور سے باہر بولتے ہو اور پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہو کہ اس طرح زندہ ہے. تو تشریح اللہ نے فرما دی نا. نہیں اب یہ آپ کا کنسپٹ بالکل ایک دم قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن کے خلاف آپ کے حساب سے جا رہے ہیں نا. چلو ہم آپ کو بتاتے ہیں. بل احیاء وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. کیسے زندہ ہے اس کا تو شعور نہیں. اللہ نے بول دیا نا ختم ہو گئی بات. تو جب اگر زندہ ہے یہ تو کنفرم ہے نا. ہاں بالکل. کیسے زندہ ہے نہیں پتا. زندہ ہے یہ کنفرم ہے نا. تو آپ زندگی کو مانتے نہیں نا یار. مسئلہ تو وہاں ہے. لیکن آپ تشریح کس بات کی کر رہے ہیں بھائی میرے یہ سنیے تو. آپ نے کیا کہا اس طرح زندہ آپ نے کیا قبروں میں زندہ ہے روح واپس دے دی جاتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے. میں ایک بات کر رہا ہوں تبریز بھائی سے. جب حضرت کی بات ختم ہوتی ہے تب آپ کی بات کہہ دیجیے. بیچ میں نہیں آپ بیچ میں بولتے کو سمجھ میں نہیں. آپ نے پہلے ایک بات حضرت ایک بات پہلے اس کا عربی میں آیت پڑھی ہے پھر بعد میں اس کا ٹرانسلیٹ کیجیے. میں عربی کا ایک سوال چلو ٹھیک ہے. میں تو خالی ارے یہ بھی وہ انگریزی پڑھ کے آنے والا. چلو میں بھی انگریزی میں بات کروں نہیں. اردو پڑھتے بھائی ہم دوسروں کو اجازت نہیں. ارے سلیمان بھائی صبر کیجیے. ٹھیک ہے آپ نے جو آیت پیش کی جب یو آر کنٹراڈکٹنگ ناؤ آپ اپنے قول سے خلاف جا رہے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی یقیناً ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہے تو زندگی تو قبول کرتے ہیں نا. دوسری جگہ آپ کہتے ہیں انک میتن آپ کو موت کا مزہ چکھنا اس کا مطلب یہ کہ زندگی نہیں ہے. آپ خود کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنے قول سے. تو قرآن کی بات کنٹراڈکٹ ہو رہی ہے. میں کیا کر رہا ہوں آپ کے حساب سے. تو قرآن اگر حساب سے نہیں. اچھا قرآن کی بات آپ کنٹراڈکٹ مانتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ آپ بول رہے ہو کنٹراڈکٹ نہیں مانتے تو مجھے دونوں کا مطلب ایک جگہ اللہ نے فرمایا یہ زندہ ہے دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں موت ہے اور تمہارے حساب سے موت کا مطلب یہ کہ زندگی ہے نہیں. اب میں بولوں تو تم ایک طرف کہتے ہو زندگی نہیں ہے دوسری طرف کہتے ہو موت ہے. کیا یہ چلو ٹھیک ہے اب میں بولوں. بولو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ نبی ہمارے شہداء اور نبی ہمارے پاس زندہ ہے. وہ اللہ کے پاس زندہ ہے کس طرح لیکن دنیا میں زندہ ہے کیا وہ قرآن میں ہے کیا؟ میں نے کب کہا دنیا میں زندہ ہے؟ میں نے کہا کہ دنیاوی جیسی زندگی ان کو حاصل ہے. دیکھیے اب پھر آپ کی باتوں میں کنٹراڈکشن ہے. کیا کنٹراڈکشن ہے؟ جیسے آپ نے بولے کہ دنیا کی طرح زندہ آپ تشریح کر رہے ہو. آپ کیا بولے کہ شعور نہیں ہے تو پھر کیوں بھائی یہ بتائیے نا. آپ پہلے کسی عالم کو لائیے بات کریں گے. آپ کو بات کرنے نہیں آتی. میں نے کیا کہا انبیاء کرام کی روحیں دوبارہ جسموں میں ڈالی جاتی ہے. ان کی زندگی دنیاوی سی زندگی جیسی ہے ایک بات. اور اس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں چاہے وہ جا سکتے اس لیے کہ پوری دنیا ان کی نظر میں ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. یہ حدیث ہے نا. حدیث ہے ٹھیک ہے. تو اب یہ حدیث ہے
चलो मैं भी मान लेता हूँ ये हदीस है, तो हम लोग के अंदर इतने इख्तिलाफ क्यों है, क्यों इतने पैदा आप लोगों ने किया है ना? मैंने किया हूँ। आप लोग जिसको फॉलो करते हो उन्होंने किया। मैं अल्लाह और रसूल को फॉलो करता हूँ, अल्लाह को, मैं किसी फिरके से नहीं आया हूँ। अगर अल्लाह और रसूल को फॉलो करते हैं तो नबी को हयात मानी, मान लो ना हयात, लेकिन दुनिया में मदद के लिए आ सकते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता। कुरान में नहीं बोला गया है कि भाई जिस तरह आप बोल रहे हो कि रूहें जिस्म में डाल दी जाती है। अभी आप कह रहे हो हयात मानता हूँ और अभी कह रहे हो कि मौत भी मानता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहा है हयात मौत। ये भाई बस सब घबरा गए हैं, ये नहीं बता पा रहे। आप बताइए, सामने इनका कहने का आपको बता रहा, आप भी नहीं समझ रहे। ये इन्होंने कहा कि मर गए और फिर हयात है ना, तो दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, है ना, सहाबाओं के साथ थे, बीवियों के साथ थे, तो अल्लाह फरमा रहा है नबी तुम्हें भी मरना है। तो अल्लाह के नबी साहबी के बीवियों के साथ सामने इंतकाल हुआ, मर गए ना, है ना, मरने के बाद हयात है। मर गए नहीं बोलो, मरने के बाद हयात। आप भी तो बोले इनका मैयत उनका मरना है, मान रहे मर गए। नबी की शान में बेअदबी है, बेअदबी में माना, लेकिन एक नॉर्मल बात। अच्छा सुनिए, इनका बोलने मतलब आप नहीं समझे कि दुनिया में हयात थे, फिर इंतकाल हुआ, साहबाओं ने दफन किया, मानते हो ना, तो वो बोल रहे हैं कि मर गए और फिर मरने के बाद हयात भी है, जिंदा। आप समझ में आए, बस क्लियर हो गई बात, वही बात हो रही। तो आप समझ रहे क्यों नहीं, दो बात बोल रहे हो, दो बात का ये वो बात भी समझ गए, लेकिन अब अभी सवाल ये है, एक ही बात कर रहे हैं कि दुनिया में इंतकाल हुआ, जब एक ही बाद में फिर जिंदा, अल्लाह के बाद में जिंदा है ना, तो जब बाद में जिंदा है तो हम तो यही कह रहे हैं कि कब्र ही में जिंदा है भाई। वो आलम बरज़ख की जिंदगी, उसका शऊर नहीं है ना, वो कैसी बात कर सकते हैं आप? तो वो बोल रहे बाकायदा आ रहे दुनिया में, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। वही तो मैंने कहा कि किसने ऐसी बात कही कि यहाँ आ रहे खाना खा रहे, किसने कही? वो तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने ये कहा जहाँ चाहे जा सकते हैं। आप अपने आगे स्टूडेंट है, आपका वो एजाज पूछो, यही बोले यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। आप तो बता रहे हैं कि भाई आ सकते, वो अलग बात है। ये पूछो, वो बताया हुआ है, वो तो हो गया। उसके बारे में मेरी वैसे तो मैं तफसीर पढ़ा था, तो मैं बोला कहते नबी मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। सेकंड आए थे, मुझे कोट किए थे कि जब 3 लोग सुन रहे तो चौथा अल्लाह है, और जब 4 लोग सुन रहे तो 5वां अल्लाह है। तो मैंने तफसीर पढ़ा था, मैं बोला कि वो कुफार मुशरिकीन थे जो 3 और 5 में प्लानिंग करते थे कि मुसलमानों को कैसे झुटलाया जाए, चिढ़ाया जाए। तो वो आयत इसलिए नाजिल हुई थी कि जो प्रोफेशनल प्लानर्स रहते थे वो 3 या 5 में होते थे। वो तो मुसलमानों को चिढ़ाते थे। मीन्स कोई मुसलमान जा रहा है तो आपस में आंखें मचोल करके चिढ़ाते थे। तो ये आयत नाजिल हुई, जो तुम 3 लोग में प्लानिंग कर रहे हो मत भूलो कि चौथा अल्लाह है। अगर तुम 5 लोग में प्लानिंग करे तो छठा अल्लाह। इससे ये साबित नहीं होता कि नबी नहीं जानते। और सेकंड आयत हज़रत क्या नाजिल हुई, जो हुजूर ने उनको स्टॉप किया, रुकाया कि ऐसे मत करो, तो किस हद तक के लिए वो रुके, फिर से वही चुड़ाना स्टार्ट किए। तो सेकंड आयत नाज़िल है। क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ अरसे तक वो रुके फिर वही स्टार्ट किए? तो सेकंड आयत भी पढ़ो, तब समझेगा ना। नहीं समझे तो अच्छा। अब आपकी और हमारी बात एक जगह मिलती है कि नबी को जिंदगी, दुनियावी जिंदगी के बाद मौत का मजा चखे और अभी जख्मी जिंदा। फर्क इतना है कि आप ये नहीं मानते कि नबी जहाँ चाहे जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये आप नहीं मानते। हम इस बात को मानते हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि नबी नहीं सुन सकते, एक दलील दे दीजिए कुरान से। नस से हो गई, कुरान से दे दीजिए कि नबी नहीं सुन सकते इंतकाल के बाद। नस से एक मिनट अजान पूरी होने दीजिए। कुरान वो मायने वाला कुरान है। मायने वाला तर्जुमे वाला तुम्हारा लोग तर्जुमे वाला नहीं आप यहाँ है कुरान शरीफ तर्जुमे का है तो गाड़ी में है ना तुम्हारे इब्राहिम भाई? आता हूँ, 2 मिनट ठहरो, रुके रहो। स्टॉप कर दो। नमाज स्टार्ट हो आते तो नमाज पढ़ जाता है 3 बजे तक, 3:30 बजे आता है, 3:30 बजे आता है, 3 बजे
वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। ठीक है, अभी हमारी और आपकी बात एक जगह मिलती है कि ज़िंदगी दुनियावी, उसके बाद मौत का मज़ा चखा, कब्र में यानी आलम बरज़ख में उनकी ज़िंदगी है। फ़र्क इतना है कि आप ये नहीं मानते कि नबी सुन सकते हैं। एक दलील कुरान से दे, आप खाली माना बता दो, मैं आज बता देता हूँ। नहीं वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ बात ये भी हुई कि तर्जुमा बहुत सा गलत भी है, तो मैं बिल्कुल है ना देखा, बहुत अच्छी बात है। कहाँ है कुरान शरीफ? आपका तर्जुमा नहीं, आप तो गलत जो है। तर्जुमा आप फॉलो करते वो ना, वो गलत है। यही बोले कि सही, तो मैं सही भी देखना चाहता हूँ। हज़रत कुरानी मजीद को देखने या तलाश करने या ढूंढने तक की बात, मुझे थोड़ा कब्र का हमारा जो तीसरा सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तुम क्या कहते थे? क्या कहते थे? मायने रहता है। हाँ, वो तफसीर लोग हैं। तर्जुमा वाला लो, कुरान है तर्जुमा वाला? है तफसीर। मस्जिद में से ले लो। आपका कुरान ऐसा नहीं। और इस शख्स के बारे में, इनके बारे में तो इनके हाज़र रजुल लिखा है। इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? तब हाजिर नहीं तो इस शख्स के बारे में कैसे फरिश्तों ने? नबी अगर हाजिर ना हो तो ये कहना कि इनके बारे में, ये तो नहीं कहा कि उनके बारे में तुम क्या कहते थे, ऐसा नहीं ना, इनके बारे में क्या कहते थे? हाँ, हाजिर रजुल, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। आप एक आयत पेश कर दो, नबी नहीं सुन सकते, एक आयत बस। हाँ, वो आयत पेश नहीं करना जो कुफ्फार और बुतों के ताल्लुक से नाजिल की है ना, नबी नहीं सुन सकते, ये आयत दिखाओ। हाँ, कुफ्फार और बुतों के ताल्लुक से मतलब कौन सा? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो दिखाएंगे ना, और मुझे मालूम है वही दिखाएंगे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, आप दिखाएंगे, मेरे को तो मालूम ही नहीं, आप मेरे को बता नहीं दें तो जो तर्जुमा आप मंगा रहे हो ना तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, जो पहला आपको जब पता है क्या बताएंगे तो आप ही बताइए कौन सी आयत तो वही तो बताएंगे। मैंने कहा कि आयत का मफहूम बता दो, मैं तो आयत बता देता हूँ। आपके आपके जहन में कौन सी आयत है जो आप तर्जुमा मंगा रहे हैं? क्योंकि आपको तो अरबी पढ़ना अगर आता आपको नहीं। नहीं, अगर आपको अरबी नहीं, उर्दू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो आप तर्जुमा क्यों मंगाए? क्या दिखाने मंगाया? वो तर्जुमे से बताऊंगा दूसरी आयत। आप तो जो बोल रहे हैं ढूंढेंगे कैसे आप जब पता नहीं तो? नहीं, आप जो बोल रहे हैं मेरे को मालूम है, आप बताइए ना। पता है मेरे कि भाई, कुरान के तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने ये कहा ना, आपने ये कहा वो ना, आयत मत बताइए जो मेरे को मालूम है, तो आप मेरे को कोट करिए, फिर मैं बताता हूँ सेम है कि दूसरी। मेरे भाई अब मैं वही जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना। हाँ, नहीं, आपने जो कहा ना, पहले ये कहा कि मुझे नहीं मालूम, दूसरा ये कह रहे कि तर्जुमा मंगाओ मैं दिखाता हूँ, मालूम नहीं तो कैसे ढूंढोगे? अरे भाई, आप जो बोले वो नहीं मालूम है, आपको मालूम है तो मेरे पास दूसरी आप आयत उसका है। मफहूम बता दो, मैं आयत बताता हूँ। तुम्हारे पास जो आयत है अभी एक और बात आ गई, वो आप क्लियर करेंगे तो मेरी तो मैं रखा ही आप हुआ ये है। कहेंगे कि आपने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये आयत आप पेश करेंगे कि आप मुर्दों को, ए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। आप ये सोचे, मैं ये नहीं बता नहीं बता, अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो हमारे हो गई ना। तो मुझे एक रिसर्च करने का मौका मिल आगे गया। पीछे हो रहे हैं। मुझे एक और रिसर्च करने का मौका आप मिल आगे गया। पीछे क्यों हो रहे हैं बोलने में कि नहीं? मैं अरे आपसे मैं बोला बताइए, आप बता दीजिए और मैं भी बता दूंगा। अभी वो आयत नहीं है ना, नहीं, वो इसका मतलब आपके जहन में कोई आयत है? कोई आयत वो आयत बता दो। आता नहीं पढ़ना। नहीं तो जो आयत आपके जहन में उसका मीनिंग तो बता दो। सलेमान भाई, उनको बोलना है, बोलना नहीं, आराम से बोले, आराम से बोले। हाँ, आ गया कुरान शरीफ, माशाअल्लाह, दीजिए। यहाँ दो। बेहद है कुछ याद तकिया। नहीं, वहाँ दो। अच्छा, मैं नीचे बैठता हूँ। नहीं बैठिए ना, कोई बात नहीं। कुरान शरीफ नहीं, नहीं, कोई बात अरे कुरान शरीफ नीचे कैसे ऊपर बैठे? अजब तो करना है कुरान शरीफ। इधर पानी गिर ये पानी ले जो अंदर, बाद में खराब लाओगे दे भाई। आप दिखाइए कुरान शरीफ कौन सी आयत आप पढ़ रहे हैं? है कुछ तकिया बेहद कुछ भी नहीं। एक बार रियाल है। पहली बात तो ये तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसका ये सही तर्जुमा है कि नहीं? सही आप पहले आयत पढ़िए, तर्जुमा सही हो गलत हो बाद में बात आयत दिखाएंगे दिखाइए। नहीं, फिर बातें खत्म हो जाएगी, इसलिए कि हम नहीं, नहीं। तर्जुमे से बात करेंगे। कंजूली नहीं नहीं, आपके हिसाब से सही मैं है। क्या बोल रहा हूँ, पहले क्लियर होने के बाद बात, इसलिए कि फिर आप बोलोगे कि तर्जुमा गलत कंजूल है। ईमान है ना ये? हाँ, तर्जुमा सही है, हम तर्जुमा मानेंगे, सही है ना? हम मानेंगे। क्योंकि अभी वही बात हुई ना अपनी कि भाई तर्जुमा बहुत अलग अलग करते हैं, ये हम मानेंगे। तो हमारा तो रॉन्ग है, हमने हटा दिया। हम मानेंगे इस बात, मैं कह रहा हूँ ना, हम सही मानेंगे, है। चलो देखो, हम फिर मानेंगे। बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा। गलत फिर ये भी गलत है तो फिर मैं तो मामला ही मैं खत्म। मानता हूँ। बोलिए, तर्जुमा कंजूल ईमान है कि नहीं? कंजूल ईमान
इंडेक्स में देख लो। ठीक। ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। जहाँ कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो तो चौथा वो मौजूद होता है। कौन? अल्लाह मौजूद होता है। 3 शख्सों की सरगोशी में चौथा अल्लाह मौजूद होता है। और 5 की तो वो छठा रहता है। 5 की सरगोशी होती है तो छठा अल्लाह रहता है। और न इससे कम और न इससे ज्यादा, मगर ये कि वो उनके साथ है। तो ये जो और न इससे कम और न इससे ज्यादा, इसका आप मतलब क्या है? अब इससे पहले वाली आयत को पढ़ो। वही सरगोशिया कर इससे पहले की आयत का तर्जुमा पढ़ो, यानी और ऊपर, ये ऊपर वाली उसका सियाक व सबक देखना चाहिए ना। जिस दिन और ऊपर से पढ़ो, जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा, फिर उन्हें उनके करतूत जताएगा। अल्लाह ने उन्हें गिन रखा है और वो भूल गए, और हर चीज अल्लाह के सामने। और फिर वो ये, ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। जहाँ कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो, चौथा वो मौजूद है, और 5 की तो छठा वो मौजूद है। और न इससे कम और न इससे ज्यादा, मगर वो उनके साथ है। ये जो है लफ्ज, और न इससे कम और न ये इससे ज्यादा, इसका क्या मतलब? आप बताइए क्या मतलब। अच्छा, मैं बता, अब आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, आपने और पेश मैं किया। गलत करूंगा तो आप बताइए। तो आपने पेश किया तो आप हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। 3 शख्स चुपके, सरगोशी यानी चुपके से बात होती है, तो अल्लाह फरमा रहे चौथा मैं वहाँ हूँ। ये मत सोचो कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं मौजूद। और 5 की होती है चुपके से, 5 कहीं बात कर रहे तो छठा मैं हूँ, है ना। और न इससे कम न इससे ज्यादा। 3 रहते तो चौथा मैं। 3 + 1 = कितना हुए? 4। 5 होते हैं तो छठा में। 5 + 1 = 6। और न इससे कम न इससे ज्यादा। तो इससे अब हाँ, मैं बात पूरी है। और न इससे, आप पूछे ना मेरे को, 3 + अल्लाह 4, ठीक है, तो हो गए 4। और 5 और प्लस अल्लाह 6। और न इससे कम न इससे ज्यादा, यानी अगर यानी कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए जो अल्लाह बोल रहा है, न इससे कम न ज्यादा। अगर हम मान ले कि भाई नबी भी सुन रहे, तो 3 + 1 4 और 5 तो ज्यादा हो गए। और फिर 5 में छठा अल्लाह, फिर नबी भी सुन रहे तो +7, तो इससे ज्यादा। तो वो अल्लाह बोल रहा है न इससे कम न इससे ज्यादा। तफसीर अब पढ़ी, उर्दू तो जानते हैं। मैं तफसीर, मैं आलिम की बात पे चलूँ कि अल्लाह की? तफसीर नहीं, तर्जुमा। ये आलिम ने तर्जुमा किया ना, मैं इस तर्जुमे में ही गौर व फिक्र करता हूँ, तफसीर पे ही मान लो। क्योंकि ये अहमद रजा खान की तफसीर, वो अशरफ अली थानवी की, वो मौदूदी की, वो जो क्या नाम है, अशरफ अली बहुत है। तो आप तफसीर तो पता है ना, हर आलिम की अलग, लेकिन तर्जुमा देखिए, जो मैं वहाँ पढ़ा वो यहाँ भी है। तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होती, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होती। यानी एक आध जगह वो जो अभी बताए मेरे को, वो होती है, लेकिन अल्लाह की वही में कोई गड़बड़ी नहीं, वो प्रोडक्शन वही में तो बिल्कुल नहीं होती अरेबिक में। लेकिन रात सवाल तर्जुमे में, जैसे 2-4 आयतें में, यानी 6000 आयतों में अगर 4 आयतों में किसी आलिम ने तर्जुमे किया है, वो इशू तो हटा दो। अब यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है पर्टिकुलर मैटर के लिए, ठीक है ना, तो इससे क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मैटर नबी नहीं जानते, या सिर्फ इसी मैटर के बारे में? अच्छा, इसी मैटर में आपकी क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पहले अपना जवाब आपने पेश कर दिया ना। सिर्फ इस मैटर को नबी नहीं जानते या तमाम मैटर को नहीं जानते? जहाँ अल्लाह के नबी ये कब की बात है पता है आपको? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। जहाँ अल्लाह के अलावा, चौथा 5वां के अलावा कोई नहीं जानता,
आप ये कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि नबी नहीं जानते, क्या ओनली दिस पर्टिकुलर बात या कोई भी बात नबी नहीं जानते? वो बता रहा हूँ कि जब अल्लाह के नबी हयात थे, जब के लिए भी आए थे, ठीक है, जब भी अल्लाह के नबी वहाँ तीन के बीच में नहीं थे। अब 5वां पारा उठाइए। तीन के बीच अल्लाह के नबी नहीं थे, तो हयात में भी ये एप्लीकेबल है, लागू होती है और कयामत तक के। अब तो है ही नहीं, जब तो थे हयात, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी बात सवाल नहीं बात आपका वो जब ये पर्टिकुलर गुफ्तगू नबी नहीं जानते थे या कोई भी गुफ्तगू नहीं जानते? तो मैं वही बोल रहा है कि ये गुफ्तगू भी नहीं जानते थे, साबित है यहाँ, साबित है, ठीक है है ना। और इसके बाद जब तो हयात थे, हाँ ठीक, हयात मौत की बात नहीं है, नहीं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे कि भाई, उस टाइम हयात थे, ये वाक़या हुआ हयात थे तो नहीं सुन रहे, हयात थे तो सिर्फ ये बात नहीं सुने या कोई भी बात नहीं सुने? मैं बता रहा हूँ कोई भी बात, मतलब जहाँ अल्लाह के नबी नहीं है, दुश्मन पीछे छुपे हैं जंगे ओहद में, सहाबा उतर के पहाड़ पे, तो अल्लाह के नबी को क्या पता था पीछे पहाड़ के? पता नहीं। हाँ, आपको तफसीर तो नहीं पढ़नी ना, तब मेरा वजू नहीं है, आपको तफसीर नहीं पढ़नी ना, आपको तो तर्जुमा ही पढ़ना है ना। अच्छा, आयत सूरह आल इमरान लीजिए, सूरह निसा लीजिए, आयत नंबर पहले निसा लीजिए, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, और इस तरफ पे है 500 पर है ना, और इधर मैं पारे से नहीं समझता, आपने आयत नंबर कोई बात नहीं, मैं जो दिखाइए यहाँ और फेरिए, 12वां रुकू लीजिए और थोड़ा लीजिए, 12-13 रुकू तक आइए, ठीक है, और इधर 13वां रुकू शुरू हो गया, ये रुकू इधर है ना। इसका तर्जुमा पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, ये पहले ऊपर से पढ़िए, तो यहाँ से हाँ, इनको पढ़ने दीजिए, नहीं इनको पढ़िए, आप पढ़िए, आप भी पढ़िए, कोई बात नहीं। तो इनमें ये कुछ लोग ये चाहते हैं कि तुम्हें धोखा दे दे और वो अपने ही आप को बहका रहे हैं और तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा, और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे। दोबारा पढ़ो, और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। अल्लाह ने फरमाया हमने आपको सिखा दिया जो कुछ आप नहीं जानते थे। आप कहते हैं नबी नहीं जानते, आप किसकी बात को मानते? तो बताओ दूं क्या नहीं जानते थे वो भी पेश कर। हाँ, तो किससे पेश? तफसीर से पेश करेंगे? नहीं आयत से पेश करेंगे, आयत से पेश करेंगे, वही ना बात, आयत से पेश करें। क्या बोले थे वो तर्जुमा? जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने आपको सिखा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जो नबी नहीं जानते थे हम कह सके, वरना अल्लाह पर ब्लेम हो गया। ठीक है, अब इसका जवाब आप दीजिए कुरान से, तफसीर से नहीं। तफसीर से नहीं, यही तो बात है। ठीक है, तफसीर से मैं नहीं, कुरान से कोशिश तो प्योर से होना चाहिए। मानते हैं लेकिन उसमें चक्कर छुपा रहता है। चलो डिस्टर्ब मत करो बीच में। बोलना नहीं है, बीच में मत बोलो। मैंने बोल दिया ना भाई, आप बात नहीं करना, ठीक है। आप मुझे आयत से दिखा दो, उस आयत का इनकार करके दिखाओ। नहीं, इनकार थोड़ी हो रहा है आयत का, यानी समझने की बात है। वो आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, तो ये क्या है समझा दो, ठीक है, बिल्कुल समझा। आयत का इनकार बिल्कुल समझा। हजरत सीखने के लिए आए हैं कुछ आपसे। इन्नमल अमाल बिन्निया, वो नीयत उनकी सीखने की है, इसीलिए डिबेट और डिस्कशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहे हैं। अच्छा, पहले एक बात और सुन लीजिए। डिस्कशन हमारी थी नबी मौत के बाद नहीं सुनते। डिस्कशन तो बहुत नहीं, वही ये तो अभी चल रही छोटे टॉपिक। अभी तक आपने कोई क्लियर कट आयत नाजिल नहीं बताई कि आयत नहीं बताई कि नबी मरने के बाद नहीं सुन सकते, अभी तक नहीं बताई। वही चल रहा है, प्रोसेस टॉपिक चालू, अभी तक क्लियर नहीं बताया, ये क्लियर मैं हो याद जाएगा। दिला रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह प्रोसेस चालू है। एक आयत उन्होंने बताई, एक आयत आपने बताई, वो बता रहे हैं। सूरह यूसुफ है ये, ठीक है, आयत नंबर 1 से शुरू से पढ़ता हूँ। बिल्कुल पढ़िए। ये रोशन किताब की आयतें हैं, बेशक हमने इससे अरबी कुरान उतारा है, अरबी कुरान उतारा है, ठीक है, कि तुम समझो, क्योंकि अल्लाह के नबी अरबी थे। समझो, हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं, इसलिए कि हमने
तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी, अगरचे बेशक इससे पहले तुम्हें खबर न थी। ठीक है, इससे पहले खबर न थी, अब खबर है कि नहीं? है ना। तो हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना। अब खबर का मतलब रसूल अल्लाह को वही भेज के बोल रहे हैं। तो वही जब तो खबर हमने कब कहा कि नबी अपने तौर से जानते थे, अल्लाह की अता से जानते थे, दुनिया से तो हम क्या बोल रहे हैं, बिना अता के जानते थे? एक ही बात है, अता से सब आपकी ये आयत इससे पहले आपको खबर ना थी, मतलब अब आपको हम खबर दे रहे हैं, सही है ना? अब वो आयत जो मैंने पेश की, जो कुछ आप नहीं, वो चीज इनकम्प्लीट है ना, कि खबर क्या दे रहे हैं, अल्लाह ताला क्या खबर दे रहे हैं? वही तो जो पहले खबर नहीं थी वो हम खबर दे रहे हैं, ठीक है ना? किस्सा यूसुफ, जो आपको खबर नहीं थी वो हम आपको खबर दे रहे हैं, वही के जरिए खबर दे रहे हैं। और यहाँ भी वही के जरिए अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत के बाद, ए नबी जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया। इस आयत के बाद कोई एक ऐसी आयत दिखा दो कि नबी ने फरमाया हो मुझे ये नहीं मालूम, मुझे वो नहीं मालूम। इस आयत के बाद यानी पैगंबरी के दौर में, अब आपके तौर अब आपके कहने पर जो सूरह मुजादिला की आयत 3 और 4 की बताई, ठीक है, उससे साबित किया कि नबी नहीं जानते। अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया आप जो नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, तो अब जितनी भी ना जानने वाली चीज थी सब मालूम तो हो गई, तो आप इसको क्यों नहीं मानते? नबी को मालूम हो गया, लेकिन बात क्या है, पहले नहीं जानते थे ये किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, हम वही के जरिए, ठीक है, ऐसा सिंपल में लीजिए। पहले जानते थे, अल्लाह बोल रहा है कि नहीं जानते थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि अल्लाह के नबी सब जानते थे मूसा ईसा के किस्से। उसका भी हम जवाब देते हैं। यहाँ जवाब फिर ये है ना, सिर्फ यही आयत आपको मिली ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब आप पहला पारा लीजिए, पहला पारा लीजिए, तीसरी आयत लीजिए, इज़ क़ाल रब्बुका, तीसरी आयत का शुरू लीजिए, और बस 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 इसका तर्जुमा पढ़िए, वही क़ाल। हाँ, और याद करो इससे, हाँ, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बस अल्लाह ने क्या फरमाया है नबी? याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जो फरिश्तों से अल्लाह ने कलाम फरमाया, अल्लाह फरमाता है नबी आप याद करो, जब थे ही नहीं तो याद क्यों करने का? जानते ही नहीं तो अल्लाह ने वइज़ क़ाल याद करो क्यों फरमाया? अल्लाह याद दिला रहा है, इसलिए याद दिलाने के लिए होना, मौजूद होना जरूरी है कि नहीं? यानी आदम का आप सबूत दे रहे हैं, तो फिर मूसा ऐसा सब जानते हैं, तो बात में आगे ना, आगे ना, तो आयत फिर रोज़बिल्ला सूरह यूसुफ की आप इससे पहले नहीं जानते थे। मेरे भाई, एक होता है इल्मी मुशाहिदा, यही तो बात मैं देखो एक जानना चाह रहा था। एक चीज होती है कि जहन में इंसान के करोड़ों बातें होती हैं, ठीक है, बैक वक्त करोड़ों बातें जहन में नहीं होती। कोई जब याद दिलाता है ना तो फौरन वो बात आ जाए, मैंने उस वक्त ऐसा किया था। इसको पहले आप समझना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने ये फरमा दिया कि आप इससे पहले नहीं जानते थे, मतलब जब आपके सामने सब मौजूद तो है, हम आपको याद दिला रहे कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अगर नहीं तो वइज़ क़ाल रब्बुका, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह फरमाया नबी आप याद कीजिए। कहाँ का इंसाफ है? चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात का आप इनकार कर रहे हैं, तब इस बात को कुरान से मानना पड़ेगा ना। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नबी मौजूद थे, ये मानते कि नहीं? नहीं मानते तो इस आयत का तर्जुमा गलत कर दो। गलत नहीं, तर्जुमा का तो याद करो वो वाकया। अरे भाई मैं आपसे कल तकरीर में थे, अच्छा नहीं थे। अब 2 दिन पहले कोई वाकया आपके साथ हादसा आया था, अब किसी से मुलाकात की होगी, एक आदमी का नाम बताओ 2 दिन से पहले मुलाकात की थी। ताहिर भाई से मुलाकात। अब मैं ये कहूँ कि भाई अब 2 दिन पहले ताहिर भाई से मुलाकात की, जरा याद करो। अगर आप मुलाकात नहीं करते तो मैं कैसे कहता कि याद करो? याद करो कहने के लिए आपका मुलाकात करना जरूरी था, आपका जिंदा रहना भी जरूरी था ना। तो अल्लाह के नबी नहीं थे तो अल्लाह ने क्यों फरमाया है नबी याद करो? तो वही तो मैं आपसे बोल रहा था, आप मान रहे हैं ना कि आदम का और सबका किस्सा मालूम है, तो अल्लाह ऐसा क्यों बोल रहा है? तो अल्लाह से पूछिए, आप यहाँ कहाँ अल्लाह से पूछिए, इसीलिए तफसीर की जरूरत है। क्या है, हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, आपको खबर नहीं, आप मुझे ये बताओ आपको नबी से इतनी दुश्मनी क्यों है? गुस्सा मत करो कि आप वो सिर्फ वही आयतें ढूंढते हैं जहाँ आपको ये बातें नजर आए, ये आयतें क्यों नहीं देखते आप? मैं बता रहा हूँ। चलो 1 मिनट, तीसरा पारा लो, आखिरी आयत
तो आपने जवाब नहीं लिया, दुश्मनी है कि क्या वजह है? जवाब लीजिए ना। हमारे को दुश्मनी नहीं है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह की सिफत पैगंबरों में नहीं डालनी चाहिए, न इंसानों में, न नहीं डाली। अल्लाह ने रऊफ और रहीम डाल दिया है। रऊफ और रहीम अल्लाह ने डाल दिया। बिल्कुल रहम करने वाले हैं, बिल्कुल है। तो अल्लाह हमने नहीं डाला, सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। नबी को अल्लाह की सिफत देने वाला अल्लाह है। तीसरे पारे की आखिरी आयत लो, आखिरी रुकू, आले इमरान तीसरे पारे की आखिरी रुकू। ये कौन सा पारा है? लन तलाले, इस तरफ, ये चौथा है। और आयत है वलक़द अख़ज़, क्या हुआ? इधर ठीक है, नहीं, और इसी ठीक है, यहाँ से पढ़ो वलक़द वइज़ अख़ज़। अब पहले मैंने बताया आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, ठीक है। अब उससे पहले रूहें तो थी ना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस्मानी तौर से पैदा फरमाया ना, उससे पहले इंसान की रूहें तो थी ना। वो तो पता नहीं है, आपको पता नहीं, तो पूरा कुरान हम पढ़े, उससे पहले हम बता नहीं मिला। इसका तर्जुमा पढ़ो। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर जरूर इस पर ईमान लाना और जरूर जरूर इसकी मदद करना, उसकी मदद करना फरमाया। अब आयत को दोबारा पढ़ो, तर्जुमा दोबारा पहले से। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया। अल्लाह ने पैगंबरों से अहद कब लिया? आलम अरवाह में, आलम अरवाह में तमाम नबियों से अहद लिया कि जब तुम्हारे दरमियान मेरा आखिरी नबी आए, मेरा रसूल आए, तो तुम उन पर जरूर भी जरूर ईमान लाना और जरूर उनकी मदद करना। अब मुझे बताइए, अल्लाह को मालूम तो था या नहीं कि नबी को आखिर में भेजेगा? तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम्हारे दरमियान, तुम नबियों के दरमियान मेरा नबी आए तो उन पर ईमान लाना? अल्लाह को मालूम था, उन लोगों ने। अरे मेरे भाई, अल्लाह ही भेजने वाला ना नबियों को, और हमारे रसूल को अल्लाह ने आखिर में भेजा, ये भी अल्लाह ही भेजने वाला। लेकिन अल्लाह ये फरमाता है, ए मूसा, ए ईसा, तमाम नबियों से फरमाता है कि तुम्हारे दरमियान अगर मेरा नबी आए तो तुम उनकी मदद करना, उन पर ईमान लाना। मुझे ये बताइए, अल्लाह ने ये कह के गलत कर दिया क्या? अल्लाह ताला पैगंबरों को बोल रहा है, ए मूसा, ए ईसा, मेरा रसूल आएगा तो तुम मानना। नबियों से, नबियों का जिक्र, तमाम नबियों का जिक्र। क्या बोल रहा हूँ? आपने अभी कहा कि अल्लाह ताला मिसाल, ए मूसा, ए ईसा, ए इब्राहिम, ए आदम, मिसाल के पैगंबर लोग के ए नबियों की जमात, तुम्हारे दरमियान मेरा नबी, मेरा रसूल आ जाए तो तुम जरूर उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। हमारे नबी उनके ज़माने में तो आए नहीं थे, ठीक है, बाद में आए, अल्लाह ही ने बाद में भेजा। तो अल्लाह जब जानता है कि वो बाद में भेजेगा, तो अल्लाह ने क्यों नबी से फरमाया कि तुम्हारे दरमियान है तो उनकी मदद करना, उन पर ईमान लाना। एक बात ये हुई, पूरी करने दो मुझे। फिर दूसरा अल्लाह फरमाता है, ए नबी याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया। तो नबियों से अहद लेते वक्त हमारे नबी मौजूद थे, तभी तो फरमाया कि याद करो हमने जब दूसरे नबियों से अहद लिया, जब तुम्हारे दरमियान ये नबी आए तो इन पर ईमान लाना, इनकी मदद करना। फिर आगे फरमाया, और आगे इसका तर्जुमा पढ़ो। हाँ नहीं, इसको तर्जुमा पूरा करने दो हमें। फरमाया क्यों तुमने इकरार किया, क्या तुमने इकरार किया, क्या तुमने कबूल किया इस बात को? अल्लाह नबियों से पूछ रहा है, और इस पर मेरा भारी जिम्मा लिया, क्या ये जिम्मेदारी लेते हो? अरे अल्लाह क्यों जिम्मेदारी देता है जब अल्लाह को मालूम है बाद में भेजेगा? तो अभी से क्यों जिम्मेदारी देता है? आगे पढ़ो। और सब ने अर्ज की हमने इकरार किया, सबने अर्ज की कि हमने इकरार किया, सबने कबूल, सब इकरार किया। हाँ, उसके बाद फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। नबी सच्चे होते या झूठे होते हैं? सच्चे होते। तो सच्चे होते तो जब उन्होंने कबूल किया तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि तुम एक दूसरे से गवाह हो जाओ? नबी तो फिर नहीं सकते वादे से, फिर भी अल्लाह और कंफर्म करा रहा है कि नहीं, गवाह हो जाओ। और आगे पढ़ो। और मैं आप तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अल्लाह खुद ये कह रहा है कि तुम तो गवाह जाओ, मैं भी गवाह हूँ। अरे नबी फिर नहीं सकते, फिर भी गवाह बनाता है अल्लाह, फिर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। अरे अल्लाह क्यों गवाह बनता है जब अल्लाह को मालूम है कि नबी को आखिर में भेजेगा? क्या पता चला? मेरे नबी की शान को मामूली मत समझो, आलम अरवा में भी नबी की तारीफ हो रही है। हो गया कि मेरे को इसकी वो आप बोले ना, मैं बताना चाहता हूं। अब मुझे आपसे इससे ये सवाल है, आप सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्से वाली आयत पेश करते हो, मैंने 2 आयतें पेश कर दी, इसके जवाब में मुझे कोई आयत दे दो कि नबी वो भी नहीं जानते थे। अभी आप लोग ने सुना है, सुने ना, आपने कहा इस आयत में कि नबी को मालूम था, 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 नबी को मालू
कि अल्लाह ताला मूसा और इब्राहिम, मैंने वो मिसाल के तौर नबियों के नबी, आप पूछेंगे कौन नबी, जैसे हजरत मूसा जैसे हजरत इब्राहिम वो मिसाल के तौर देखिए यहाँ मिसाल नहीं, यहाँ ये आप बता रहे यहाँ हैं नबियों का जिक्र है ना। चलो मैं उस मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को वापस लेता हूँ नाम को, नबियों का जिक्र है तो सब आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते तो वो भी आ गए। तो यानी आप यहाँ ये इस आयत में ये फरमाना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों से अहद लिया है ना, और अहद लेने से पहले अहद लिया तो नबी से फरमा रहा कि नबी आप याद करो कुरान कब नाजिल, कुरान कब नाजिल हुआ नबी की दुनियावी जिंदगी में, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि याद करो, मतलब नबी उस वक्त मौजूद थे और याद करने के लिए नबी देख रहे थे कि अल्लाह ताला नबियों से कैसे जिक्र फरमा रहा है, कैसे वादा ले रहा है और कैसे गवाह बना रहा है। तो आप फरमा रहे हैं कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया, हाँ है ना, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। हाँ वही कुरान कह रहा है, तमाम पैगंबरों से अहद लिया। उम्मत यानी औलाद का भी है, दिखाओ मैं बताऊंगा अभी, आप औलाद आदम का भी है, वो भी दिखाता हूँ। आयत में दोनों बातें नहीं, इसमें सिर्फ नबियों का है ना, दूसरी आयत में तमाम लोगों का है। अच्छा दिखाइए, ठहरिए मैं ये आयत पहले क्लियर करूँ फिर दूसरी आयत। बिल्कुल। आप इस आयत में फरमा रहे कि तमाम पैगंबरों से हमने अहद लिया, पैगंबरों से कि मेरे पैगंबर आएंगे जी, हमने तमाम पैगंबरों से अहद मेरा लिया। कहना यहाँ ये है, आप बात को समझने की कोशिश वही समझूंगा फिर मैं पढ़ूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नबी को तमाम चीजें मालूम थी, ये हमारा अकीदा। तुम्हारा अकीदा नबी को पहले मालूम नहीं थी, वो बात नहीं हो रही है, ये वही हो रही है। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके यही बताया कि नबी को पहले मालूम नहीं था, अल्लाह के बताने पर मालूम हुआ। हम ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह के बताने ही पर सब मालूम था और ये सब के सब अल्लाह ने पहले से ही बता दिया है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट ये है, अब बदलना नहीं टॉपिक को, समझे? नबी को अल्लाह ने सब कुछ बता दिया, पहले से मालूम है, ये हमारा अकीदा है। दो आयतें पर याद आती है, तो नबी के इल्म में तो सब कुछ है। अच्छा, अब मैं दूसरी आयत आपको बता दूं, ये तो नबियों का जिक्र हुआ मेरे भाई, और से पढ़िए, और से पढ़ेंगे, और आयतें दिखाएंगे आपको। हाँ वो नहीं देंगे, नहीं देंगे, अब देखते रहेंगे इंशाल्लाह। बुजुर्गों का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है साथ में। हाजी साहब वो मुझे नींबू का पानी जरा दोबारा पिलाएंगे। नींबू पानी और हाफिज साहब खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपने उनकी महक दिल के पढ़ के दिल बहुत मजा आया माशाल्लाह। अब ये आयत में जो आप बात बोल रहे हैं, मोबाइल साइलेंट, मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, नबी को सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। नहीं आपने आप ये कह रहे हैं कि नबी ये चीजें नहीं जानते, मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सब चीज जानते हैं। आप फरमा रहे हैं कि अहद लिया कि मेरे पैगंबर आएंगे, पैगंबरों को बोल रहे हैं ना, पैगंबरों को ही बोल रहा है ना, पैगंबरों नहीं, हमारे नबी को अल्लाह बोल रहा है कि आप याद करो मैंने पैगंबरों से अहद लिया। क्या अहद लिया कि मेरे रसूल आएंगे? तो आप याद करो का मतलब जब थे ही नहीं तो याद करना कैसा? तो यानी नबी, अब वही ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे क्या कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया कि मूसा से, ईसा से, सब पैगंबर आ गए कि मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनकी मदद करना, है ना? आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताना चाह रहा, ये जो वाकया हुआ है नबी उसको आप याद कीजिए, तो याद करने के लिए नबी का मौजूद रहना जरूरी था। तो भाई नबी का मौजूद रहना, आपका मानना यह है कि नबी मौजूद नहीं थे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब मदद करेंगे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रहेंगे तभी मदद करेंगे ना। अल्लाह फरमा रहा है, वही तो मैं क्या है उनके दरमियान में, कहाँ थे? अल्लाह को गलत कह रहे हो आप? तो ये आप सोचिए, ये उम्मत, ये आप सोचिए मेरे भाई, आप क्यों मेरी बात, मूसा के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, नहीं तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि जब वो आएंगे तो तुम उनकी मदद करना। हाँ, तो इसका मतलब ये उम्मतियों को बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आए, नबी
आप देखिए आप बोलिए कि मूसा और इब्राहिम या इसाक अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, समझ रहे नहीं हो आप बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, जब से पैगंबर आप उम्मत को कहाँ से लाए? पैगंबरों से अहद लिया, पैगंबरों से अहद लिया, यही तो बोल रहा हूँ मैं। पैगंबरों से अहद लिया तो अल्लाह फरमा रहे हैं नबी याद करो। तो आप कह रहे हैं कि नबी मौजूद नहीं थे, मैं कह रहा हूँ मौजूद नहीं थे तो अल्लाह ने याद करो क्यों फरमाया? तो सब पैगंबर मौजूद थे ना, आप नबी पर क्यों बोल रहे हैं? समझ रहे हैं, बात ले ना, आप बोल रहे हैं पैगंबर एक मौजूद थे, सब पैगंबर मौजूद थे, उसी में सब पैगंबर मौजूद थे, हमारे नबी भी मौजूद थे, तभी अल्लाह ने फरमाया याद करो। ये बात कह रहा हूँ, आप मानते नहीं कि नबी मौजूद तो जब नबी मौजूद थे तो अल्लाह ताला बोल रहा है पैगंबरों जब मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम उनकी मदद करना, ये बोल रहे हैं ना आप। तो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद भाई साहब पहले जो है बोल रहे आप कहना ही चाह रहे हैं कि हर को आलम में अरवाह का कुछ भी मालूमात नहीं है। वही तो मैंने कहा कि किसी आलिम को सामने लाओ। देखिए आलम में अरवाह की माने ही नहीं मालूम, आलम में अरवाह का वो जमाना ही नहीं मालूम। चलो ठीक है, वही तो मैंने शुरू में कहा कि एक आलिम से जब इनसे बात जी हजरत ये चाहिए हमें। चलो ठीक है, कहाँ जिक्र किया? नहीं ये बात देखिए आप बताना ही चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको यूसुफ का किस्सा सुना रहे हैं, इससे पहले आपको खबर न थी, उसकी तशरीह में ये बता रहे हैं, ये आयत में वो है ही नहीं। ठीक है, सूर्य नाम लो 7वां पारा। इस्लाह कर लेने आई, इंशाल्लाह इनकी इस्लाह होती है, बीच में डिस्कस कौन भी करने को दूर जा रहे हो सब लोग बीच में बोलने को कौन सा है ये वाला? अकेले बात करेंगे ना। और 7वां पारा लो, सूर्य नाम। ठीक है, ये कौन सी आयत है? अच्छा यहाँ कहीं और इस तरफ ले लो और नहीं ठीक है दो दलीलें दिए कुरान से, एक भी दलील कुरान से रद्द नहीं है और कुरान के नस से साबित है, नस से कुरान से दो ना कि तुम्हारे तो कहाँ है वाला रसूल वाला या बिस्मिल्लाह फी किताबी ये 7वें पारे में ही है। 7वें पारे में किस तरफ है? ये आधे पारे के करीब में देखिए, आधा पारा जहाँ पे उठाता है। नहीं और इधर इस तरफ ये वो लीजिए इंशाल्लाह तो आगे चलो इधर और इधर वाला रसूल वाला या बिस्मिल्लाह फी किताबी मुबीन। आधे पारे से थोड़ा आगे ये और इधर हाफिज़ अभी मौजूद है ना? अच्छा आगे लीजिए थोड़ा आगे पारे से। हाँ ये हो गया ठीक है, यहाँ से पढ़ो। और जो पत्ता गिरता है वो उसे जानता है और कोई दाना नहीं जमीन के अंधेरियों में और न कोई तर और न खुश जो एक रोशन किताब में लिखा न हो। अब पढ़िए आप इसको। सही पढ़े ना? आप जो है ना तफसीर तो नहीं देखते? नहीं। रोशन किताब में तो क्या मतलब हुआ? कुरान में हर खुश्क हर तर का जिक्र है, एवरी वेट एंड ड्राई का कुरान शरीफ में जिक्र है। दूसरी जगह पे है वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन, हर छोटी बड़ी जिक्र का मौजूद है। ठीक है ना? कुरान में हर छोटी बड़ी जिक्र का इल्म मौजूद है। अब लीजिए सूरह रूम 21वां पारा। ये हम भी है और आगे अरे 21वां पारा और आगे लीजिए और आगे 21वां पारा लीजिए, सूरह लुक़मान लीजिए और रूम और उसके बाद लुक़मान लीजिए और ठीक चलो ठीक इसको तर्जुमा पढ़िए। और अगर ज़मीन में और अगर ज़मीन में जितने पेड़ हैं सब कलमे हो जाएं और समंदर इसकी स्याही हो, इसके पीछे 7 समंदर और तो अल्लाह की बातें ख़त्म न होंगी। क्या मतलब हुआ कि ज़मीन में जितने दरख्त है, कितने दरख्त है पता है? करोड़ों सब दरख्तों को तुम कलम बना लो, ठीक है, और पूरे समंदर को स्याही। एक इतने ग्लास में एक पेन में जिसमें हम 100-200 सफ़ा लिखते हैं, पानी का 1 या 2 ड्रॉप होता है।
तो इतने ड्रॉप में तो कई कलम बन जाएंगे, पूरे जग में सैकड़ों कलम बन जाएंगे, पूरी नदी में तो हजारों कलम बन जाएंगे, और पूरे समंदर में करोड़ों अरबों कलम बन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मजीद और 7 समंदर ले लो, इसके बाद भी कुरान की तफसीर करोगे तो कुरान की तफसीर नहीं खत्म नहीं होगी। क्या मतलब? कुरान में इतनी चीजें अल्लाह ने फरमा दी है, कुरान में इतनी चीजें हैं कि तमाम दरख्त को कलम बनाकर 7 समंदर, एक नहीं 7 और समंदर ले लो, इंक बना लो, फिर भी खत्म नहीं होगी। और ये वो कुरान है जिसमें हर छोटी बड़ी का जिक्र है, हर खुश्क व तर का जिक्र है। अब सूरह रहमान लो, 27 पारा। दोबारा बोलता हूँ, कुरान में हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र है, हर वेट एंड ड्राई चीज का जिक्र है। इतना जिक्र है कि पूरी कुरान की तफसीर करने के लिए अगर दुनिया के तमाम दरख्त को पेन बना लो, समंदर को इंक बना लो, 7 समंदर और लेकर इंक बना लो, फिर भी कुरान का इल्म खत्म नहीं होगा। सूरह रहमान की पहली आयत पढ़ो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, तर्जुमा पढ़ो। 7वें पारे में स्टार्ट में 27 आधे के बाद कहाँ है ये? तो हाँ ठीक है, रहमान है सही नहीं, ज़ुखरुफ है, इधर है 27वां पारा, और आगे हाँ बस हाँ। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। ठीक, बस इतना काफी। अल्लाह ने फरमाया ए नबी कुरान हमने आपको सिखाया। कुरान में हर चीज का जिक्र है, छोटी बड़ी चीज का जिक्र है। इतना जिक्र है कि तमाम समंदर को कलम, दरख्त को कलम बना लो, समंदर को इंक बना लो तो भी खत्म नहीं होगा। क्या मतलब? नबी के इल्म को लिखने के लिए तमाम दरख्त को कलम बना लो, समंदर को सियाही बना लो, 7 समंदर और ले लो, नबी के इल्म को कंप्लीट नहीं कर सकते। एक बात ये हुई। अब लो सूरह क़ियामा 29वें पारे में। अब नबी के आपको जो ना वो एक चुन के आयतें लेते हो, ये आयतें कहाँ जाएगी? सूरह क़ियामा 29वां पारा। और लो सूरह नूह के बाद, हाँ और आगे मुदस्सिर के बाद, ठीक, और आगे मुदस्सिर के बाद है। हाँ अब आइए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि ला तुहर्रिकना इन्ना अलैना, इसको पढ़ो। बेशक इसका महफूज करना और पढ़ना हमारे जिम्मा ही तो है। जब हम इसे पढ़ चुके, इस वक्त इसे पढ़े हुए की इत्तबा करो, फिर बेशक इसकी बारीकियों का तुम पर जाहिर फरमाना हमारे जिम्मे ही। कुरान की बारीकियों को जाहिर फरमाना अल्लाह फरमाता है नबी ये हमारे जिम्मे है। तो अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, नबी को पूरा कुरान सिखा देगा और नबी को हर चीज का इल्म दे देगा। तुम कहते हो ये नहीं पता वो नहीं पता, हम तुम्हारी बात को माने या इस बात को माने? 4 दलील है कुरान से, 4। अरे और बहुत है। अब मुझे अब मैं ये कहना हूँ, आपने सिर्फ सूरह मुजादिला की वो कुफ्फार मुनाफिकीन के ताल्लुक से होने वाली राज को पकड़ के ये कह रहे हैं कि नबी को मालूम नहीं। और सूरह यूसुफ की बात को अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी इससे पहले आप नहीं जानते थे। हम उसी आयत से साबित करते हैं कि इससे पहले नहीं जानते, अगर मान ले तो अब तो जानते हैं। आप जानते हैं तो हम भी मानते। ये देखिए आप है ना, पहले नहीं जानते थे, मान लो हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि सब जानते पहले के। ये बात अब जानते, फिर अल्लाह बोल रहा है आप नहीं जानते थे, हम किस साथ सुना रहे हैं? आपने कबूल किया ना, पहले नहीं जानते थे, अब जानते आप मान रहे हैं। अब जानते आप मान रहे हैं ना? मान रहे हैं। अभी जानते आप मान रहे हैं, आ चुकी है। अभी जानते आप मान रहे हैं। कुरान पूरा हो चुका है, दीन पूरा हो चुका है, लेकिन बात क्या थी हमारी? पहले से जानते थे। आप बोले कि आदम से लेके सब पूरा जानते तो उसके लिए हमने दलीलें दी ना, उसके लिए दलीलें दी। अब उसके लिए मैंने आदम अलैहिस्सलाम वाले आयत पेश की। ये सब दलीलें दे रहे हैं आप, मेरे भाई बात से आपके लग रहा है कि सब जानते, गैब जानते, सब बोल रहे हैं आप, है ना? मैं भी तो कुरान ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो फरिश्तों को अल्लाह ने फरमाया कि मैं आदम को पैदा करने और नबी से फरमाया नबी आप याद करो, उसका क्या मतलब होगा फिर अगर जानते नहीं थे तो? जवाब दो। इसी तरह नबियों से अहद लिया। अच्छा, इसी तरह नबी के पैदा होने के कुछ साल पहले फील का वाकया हुआ, हाथियों वाला, है ना? वो जो अबरहा, ठीक है ना? अल्लाह ने फरमाया अलम तरह, ए नबी क्या आपने नहीं देखा? पैदा तो नबी नहीं हुए थे। अलम तरह फरमाया। चलो ये 2-4 साल की बात थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजारों साल पैदा हुए।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान जो मुकालमा वो अल्लाह ने फरमाया अलम तरा इलल लज़ी हाज, क्या नबी आपने नहीं देखा है नमरूद इब्राहिम से झगड़ा कर रहा था? वही तो आपने नहीं देखा, जब थे नहीं तो ना देखने वाली बात कहाँ से आ गई भाई? वही मैं तो ये सब आयतें कहाँ जाएगी? तो वही आपका वही हमारा ये कहना है। आप एक डिस्कस पर उतर रहे नहीं पूरे। मेरा ये कहना है, मैंने जो कहा ना कि नबी से दुश्मनी की बात, उसकी वजाहत करता हूँ। इतनी सारी आयतें हैं कि ए नबी क्या आपने नहीं देखा, याद करो, उन सबको आपने नजरअंदाज करके सिर्फ इन्हीं आयतों को क्यों लिया? इसका जवाब पहला दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब आयतों को आप समझ रहे नहीं, अल्लाह ताला का कहने का यही मतलब है। आप ही समझ रहे हो तो बता दो कैसे समझ आप है ना बताना ये चाह रहे हैं कि मूसा के टाइम भी सारे वाकयात पता थे और आदम की हुआ और वो सब वाकयात पता थे बिना बताए। अच्छा अभी तो आपने कहा था कि वही आने के बाद आता मालूमात होती, फिर बोलते हैं अल्लाह के अता ही से सब मालूम है। हमारा अकीदा क्या है? जैसे पूरा कुरान खत्म हो गया, नबी का इल्म कंप्लीट हो गया। और नबी ने फरमाया, हदीस सुनिए, इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती। ठीक है, हमारे नबी ने फरमाया इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती, मेरा इल्म मेरे दुनिया से जाने के बाद ऐसा ही है जैसा मेरी जिंदगी में मेरा इल्म। तो इससे साबित हुआ कि हमारे नबी का इल्म आज भी वही है। तो वो है ना, कुरान है, सिंपल है। तो आप उसको रिजेक्ट करो ना। अब मेरा सवाल ये है, किया हमने, बताओ ना आपने कहा कि नबी अब नहीं सुनते, कहा कि नहीं? एक दलील दी आपने अभी तक। इल्म है तो इल्म के ऊपर अमल करना है ना। दलील तो नहीं दी आपने। अगर ये दलील क्या दलील आप बोल रहे, मैं आप एक बात बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि आता है? नहीं आते, नहीं आते। अब आप दूसरी जगह बोल रहे आ सकते हैं, तो इसका क्या मैं मतलब समझूं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कंफ्यूज आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। कौन कहता है नहीं आते? अभी बोलते आ भी सकते, तो इसका मैं मतलब क्या समझूं? नहीं भी आ सकते नहीं कहा मैंने, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते। तीन चार जगह से रिकॉर्डिंग हो रही है, 3-4 जगह से रिकॉर्डिंग सुनिए, 4-5 जगह से रिकॉर्डिंग हो रही है। आप रिवर्स करके सुन लीजिए। मैंने ये कहा हमारे नबी हयात है, अपने जिस्म के साथ तमाम नबी हयात है, जहाँ चाहे जा सकते हैं। तो वही तो मैं ये समझू ना, जहाँ जा सकते, मतलब महफिल में भी जा सकते हैं, हमारी जो महफिल है इधर भी जा सकते हैं, नबी की मर्जी, उनकी मर्जी, जहाँ चाहे जा सकते हैं। आप कौन होते हैं एतराज करने वाले भाई? तो यही तो बात है। तो मैं कब समझू कि वहाँ गए हैं, वहाँ जा चुके हैं, तो गए तो अब मौजूद है कि मैं कैसे पता चले? आपको समझने की क्या जरूरत है? तो यकीन करो कि नबी जहाँ चाहे जा सकते हैं, उससे बढ़कर आपको क्या सुना है? आप इसको मानते क्यों नहीं है? तो बात है ना, आप इसको मानते क्यों नहीं है? अच्छा दूसरी बात हजरत बता रहे हैं, दूसरी बात जो हमारी डिस्कशन थी, नंबर 1 नबी कब्र में हयात है। इन्होंने इस बात को कही कि हम मानते हैं हयात है, लेकिन जिस्म के साथ हयात है ये नहीं मानते। एक है, इस पर कोई दलील एक भी नहीं दी। मैंने दलील दी बैहक़ी के हवाले से, इमाम सुबुकी की किताब के हवाले से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के हवाले से कि अंबिया किराम की रूहें दोबारा उनके जिस्मों में डाल के बाहर की बात पूरी करने दीजिए। कुरान से ही साबित है, कुरान की रोशनी ही में हदीसें हैं। और आपके इब्ने तैमिया को मानते हैं आप? कौन इब्ने तैमिया? वो आपके गैर मुखल्लिदों के बड़े इमाम है इब्ने तैमिया। नहीं जानते, तो इसका मतलब आलिम नहीं हो। चलो ठीक है। इब्ने तैमिया का शागिर्द है इब्ने क़य्यिम जौज़ी। आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए। इब्ने क़य्यिम जौज़ी ने एक किताब लिखी है किताबुर रूह। मेरे पास मेरे मोबाइल में वो किताब मौजूद भी है, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। जब अल्लाह ताला बोल रहा है रूह के बारे में, सुनिए गैर मुक़ल्लिदों के इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने क़य्यिम जौज़ी किताबुर रूह में लिखता है कि ऐसे वाक़यात कई मरतबा पेश आए कि सहाबा कराम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और दीगर सहाबा कराम विसाल के बाद जंगों में आके मदद करते थे। नबी सहाबा मदद करते थे। किसकी मदद करते थे? मुसलमानों की। जो जंग होती थी इंतकाल के बाद। हाँ, आपकी किताबों में लिखा है। मेरी किताब कौन सी है? तुम्हारी किताब में क्या बोल रहे? जिसकी बात को सुनकर आप कहते हो ना कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, उनका कहना है, उनकी किताबों का जिक्र है। आप मुझे बताइए, आपको किताबों में बहुत गड़बड़ है। नहीं, मैं कुरान पाक है,
मिलावट से, हम कुरान को पकड़ के सारी बातें। अरे वही तो मैंने कहा, किताब ये कुरान, हम तो चलो ये कुरान है कह के, ये कुरान है कह के हमको पता इसलिए चला। कुरान को समझेंगे जी अरे भाई कुरान शरीफ, कुरान मैंने शुरू में बताया ना, हमारे नबी की एक जबान मुबारक, सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम, वो कुरान बन गया, ये मेरा कलाम, ये हदीस बन गई। तो कुरान को कुरान मानने के लिए नबी की जबान को मानना जरूरी है। हाँ सही हदीस होना नहीं मानते, लेकिन सही होना चाहिए, सही हदीस, सही हदीस। बस मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। सही हदीस है कह के आपको कैसे बात, हदीस सही है कह के आपको कैसे पता चलेगा? हमारा पहचानने का ये तरीका है, क्या तरीका? ये अल्लाह के नबी की बात है कि नहीं है। हम लोग कुरान की रोशनी में चेक करते हैं कि अल्लाह के नबी की बात कुरान के खिलाफ हरगिज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छी अगर बात कुरान के खिलाफ लगती है हाँ। तो हम ये समझ जाते हैं कि ये दुश्मनों की, चाहे शिया यहूदी जो भी हो, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा। के नाम से गढ़ा अच्छा, है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुरान फुरकान है, अल्लाह फरमा रहे ये किताब सच और झूठ का फैसला, इस बेस पे हम लोग ये काम करते हैं। वो रावी चेक और सब जो उलमाओं का फन है ना, हम लोग इसलिए कि दुश्मन रावी ओरिजिनली रखता है, रसूलुल्लाह का नाम रखता है, साहबाओं का रख के ही डुप्लीकेट बात घुसाता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नाम तो रखेगा नहीं। अब्दुल्ला बिन सबा या अबू जहल, ओरिजिनल नाम रख के वो लोग काम करते हैं। कि इमाम बुखारी देखिए कई लाख हदीस जमा की, आप सुने होंगे, और सब रिजेक्ट करके सिर्फ कितनी है सही हदीस? ये गलत है। अभी मैं सुना हूँ कई लाख, आप सुने हो तो आपने अच्छा कितनी लाख हदीस जमा की थी? बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, हाँ। और उसमें से सही हदीस 1 लाख थी, और बुखारी शरीफ में तकरीबन 7000 हदीसों को जमा किया। बाकी सब जमा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हदीसें नहीं, वो राइट। अरे उनकी दूसरी किताबों में है, दूसरी बुखारी की और दूसरी किताब अल-अदबुल मुफरद है इमाम बुखारी की। देखिए मेरे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करना पता है, एक के बाद बुखारी शरीफ को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्यों मानते हो? क्योंकि वो बहुत अच्छे आलिम हैं। बुखारी शरीफ को मानने के लिए आपको कहा किसने? हाँ, बुखारी शरीफ को मानने के लिए आपको क्या नबी ने कहा? इमाम बुखारी 250 साल बाद पैदा हुए, क्या नबी ने फरमाया कि बुखारी की हदीस लो? क्यों मानते? आप जब कुरान के अलावा कुरान के अलावा जाते नहीं तो बुखारी की हदीस को मानने का क्या हक है? अल्लाह के नबी की सुन्नत उसी में है ना, सब जमा। आपने खुद कहा ना कि रावी जो है ना फैब्रिकेट करते हैं, नाम को चेंज करते हैं, आप ही ने तो कहा। तो क्या यकीन है कि बुखारी में सही हदीस है? सही भी है ना, गलत भी है। सही है क्या कि किसने कहा? अच्छा गलत है आप नहीं जानते? मेरे भाई बुखारी में बुखारी में हदीस सही है कह के किसने कहा आपको? किसने कहा कि हम उसको चेक करते हैं? अरे कुरान से। अरे मेरे तो गलत है क्या कि किसने कहा? चेक करते हैं कुरान से। आपको जब अरबी नहीं आती तो कैसे आप चेक करते हैं? तर्जुमे से। तर्जुमा करने वाला कौन है आपको क्या पता? आलिम लोग। तो उन आलिम को आप मानते हैं ना? उन आलिम को मानने का हक किसने आपको दिया? किसने दिया पता चलता है। अजीब सी बात करते हैं आप कहते हो कि मैं कुरान के अलावा किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन आलिम के तर्जुमे पर आप कुरान को मानते हो, तो इसका मतलब आलिम को मानते हो, और उस आलिम के कहने पर सही और ज़ईफ हदीस को तुम कबूल कर लेते हो। तो इस आलिम को मानने का हक किसने दिया? मुझे बताइए कौन आलिम है? आलिम बहुत है, किसका आपने किस आलिम की बात कह के ये सब कह रहे हो कि ये सही है, ये कुरान से में आपको अरबी नहीं? मेरे भाई आपको अरबी नहीं आती, आपने इकरार किया। आपको ना कुरान पढ़ना आता है अरबी, ना हदीस अरबी में पढ़नी आती, आपने इकरार किया। तर्जुमे के बेस पर आपने फैसला किया कि ये सही है, ये गलत है। तो जिसके तर्जुमे पर बेस किया वो कौन है? इंसान है, आलिम। तो एक आलिम को फॉलो क्यों करते हो जब आप कुरान के अलावा किसी को मानते नहीं? तो आप तर्जुमे पे डिपेंड क्यों होते हो? सही है। आप मैंने जब कहा कि ये हदीस है तो आप कहते हो ये हदीस गलत है। आपको गलत और सही की पहचान अरबी के बगैर आ नहीं सकती, तो किसी एक के कहने पर आप उसको सही और गलत मानते ना। वो कौन आदमी है जिसकी बात को आप मान के बैठे हो? अरे अल्लाह की बात है ये, आप समझे मेरी बात? ये मेरी बात। इनका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? असलम भाई। असलम भाई मेरी बात को आप बखूबी समझ चुके हैं, आपके पास जवाब नहीं है। आपने कुरान आपने खुद इकरार किया, मैंने कहा ना, इसने खुद की इकरार किया अरबी मैं नहीं जानता, और तर्जुमे के बेस पर
मैंने सही और गलत का फैसला किया, तो किसके तर्जुमे के बेस पर आपने सही और गलत का फैसला किया? चलो मुझे बताओ, आला हजरत के तर्जुमे पर आपने वही तर्जुमा हो रहा है, तर्जुमा हो रहा है, ये तो अभी देख रहे हैं ना, आपने पहले से आके बता दिया ना कि वो हदीस सही नहीं है। हाँ, तो पहले से मालूम है वही। अच्छा ठीक है, ठीक है, बात इसी में ठीक है। तो आला हजरत की बात को लेके कहे ना, तो आला हजरत की बात से तो सरकार का इल्म गैब साबित होता है, आप क्यों मानते नहीं? और आला हजरत की बात से ये भी साबित होता है कि अंबिया किराम कब्रों यानी कब्रों में सुनते नहीं, कह के कोई तर्जुमा नहीं है, आप उसको क्यों नहीं मानते? आला हजरत की बात से गैब का इल्म मालूम होता है, तो यहाँ तो आला हजरत ही तो बोल रहे हैं तर्जुमा किए हुए। सुनिए आप, आला हजरत ही तर्जुमा चुप बैठो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे कयामत को पूछते हैं कि वो कब ठहरी है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमानों और जमीन में, तुम पर न आए मगर आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने इसे खूब तहकीक कर रखा हो, तुम फरमाओ ए नबी उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। तुम फरमाओ ए नबी मैं अपनी जान के भले और बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब की बात गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत सी भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंचती। मैं तो वही डर और खुशी सुनाने वाला हूँ उन्हें जो ईमान रखते हैं। अब ये तर्जुमा तो अहमद रजा खान का ही कि मैं नहीं जानता कयामत कब आएगी, ए नबी इनसे कहो कि मैं गैब नहीं जानता। ये कौन, मैं किया हूँ तर्जुमा? ठीक है, बात सुनिए आप, दोबारा इसको पढ़िए आप पढ़िए भाई, आप दोबारा पढ़िए, हम समझाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको। तुमसे कयामत ठीक है, ठीक है, मोबाइल को साइलेंट कर लो भाई, साइलेंट कर लो। तुमसे क़यामत को पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, इसे वही इसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमान और जमीन में, तुम पर ना आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने इसे खूब तहकीक कर रखा है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। ठीक है, तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंची। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित क्या, जो लिखा है कि मैं गैब नहीं जानता। गैब का मतलब अनसीन, पोशीदा अहवाल। ठीक है, मैं नहीं, सही है कि नहीं? मैं नहीं जानता। अगर मैं गैब जानता तो बहुत से फायदे उठा लेता और मुझे मुसीबत भी नहीं आती, पहले से बचाव कर लेता। ठीक है, अब आप लीजिए सूरह जिन। नहीं, ये गलत है तर्जुमा। ये वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। कुफ्फार जब सरकार से पूछने आए तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आप फरमा दीजिए मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मतलब ये कि मैं अपनी ज़ाती तौर से नहीं जानता बल्कि अल्लाह की अता से जानता हूँ, और अल्लाह की अता से जानने पर कुरान की आयतें नस से साबित हैं। उसको आप इनकार करेंगे? सूरह जिन की आयत लो, वही तो मैंने कल रात बताया। और आगे का जुमला, अगर मैं गैब जानता तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता और मुझे कोई मुसीबत ही नहीं आती। इसका वही तो कह रहा हूँ, अपने तौर से, जाती तौर से। अब आइए आगे देखिए ना, तो उस दूसरे आयत का क्या करेंगे आप? जाती तौर से तो नहीं जानता, वही आने के बाद, बताने के बाद तो हर कोई जानता है। आप भी जानते हैं कि कयामत के पहले मेरे भाई जब मशरिक से सूरज निकलेगा, आप तो भी जानते आप हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हम, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम नबी को इल्म गैब अपने जाती तौर से मानते हैं? तो यही तो सब लोग बोल रहे हैं। ये तो आपने बहुतान लगाया। क्या किसी ने ये कहा कि अल्लाह के अता के बगैर कोई नबी इल्म जानता है? तो हम भी वही बोल रहे हैं। तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा किस बात का? इसी बात का कि हमारा अकीदा कब जा सकते हैं? अरे बिना बताए पता है, बिना बताए। देखो मुझे एक आलिम बता दे
मैं कहता हूँ वो आलिम काफिर है अगर उसने कहा कि अल्लाह के अता के बगैर नबी जानता है। अब एक आलिम बताए, किसने ये बताया? आपने बहुतान लगा रहे सुन्नी उलमा पर। आप ऐसा बोल रहे हैं आलिम लोग अवाम को, जो अवाम हमारे साथ उठते बैठते दोस्त, अवाम की बातें क्यों लेते हो? क्लियर नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? वही के जरिए बताया जाता है तो अल्लाह के बताना चाहिए भाई नबी पहले से कुछ नहीं जानते थे, वही के जरिए तो ये बताया जाता है। मुझे एक आलिम बता दो। आलिम नहीं, आलिम को स्टूडेंट लोग अरे भाई शागिर्दों को आलिम जैसे आप जाहिल हो ऐसे स्टूडेंट जाहिल होते हैं। तो समझाइए। हाँ, तो वही तो मैं समझाने आ रहा हूँ। तो समझिए कि भाई अल्लाह वही के जरिए आपने वो तो आपका हमारा सेम ईमान वो बात नहीं। अरे लेकिन बिना बताए पता था तो वो अल्लाह बोल रहा है आपको नहीं पता था, हम बता रहे हैं। नहीं ठीक है, जब वही के जरिए आप मानते हैं तो अब सवाल एक पैदा होता है, वही के जरिए अब भी इल्म है या नहीं? बिल्कुल है। अब भी हमारे नबी जानते हैं या नहीं? वही के बाद अल्लाह के नबी वही के बाद तो जानेंगे, नेचुरल है। वही के बाद हर बात जानते, लेकिन अब इंतकाल के बाद, इनका इंतकाल के बाद तो अल्लाह ताला उनको कैसे रखा, कहाँ रखा, उनको शऊर ही नहीं है। तो हमने बती हदस वो बात क्यों लाए? हयात की बात हो रही थी, हयात में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, जब की बात हो रही। कभी गाय पर ये बात और ये अमल के अंदर कुछ अपना डिस्टर्बेंस भी नहीं है। डिस्टर्बेंस नहीं उसमें। अगली आयत तो भी सुनो, क्या उसको झुटलाओगे? सुनो नहीं वो अभी तक क्या दिखला दिया हमने वो तो बता दो। वो आयत का मतलब ये अभी तक दलील नहीं पेश किया आपने। इन्होंने देखो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जिस बेस के साथ ये आयत है नबी को इल्म गैब नहीं है कहने के लिए, और सूरह यूसुफ की आयत भी पेश कर दी कि नबी नहीं जानते, वो सूरह मुजादिला के आयत से एक न ज्यादा न एक कम क्लियरली कहा ना। उसके बाद जब हमने 4-5 आयतें पेश की तो दब गए। अब ये कहना पड़ता है नहीं हम मानते हैं अल्लाह की वही के बाद जानते हैं, पहले ये क्यों नहीं बताए? पहले तो आते ये बताया कि ना एक ज्यादा ना एक कम, नबी जानते ही नहीं। और ये भी आपने कहा कि जब जिंदगी में नहीं जानते थे तो अब कैसे जानेंगे? अब ये कह रहे हो कि जिंदगी के बारे में हमें शऊर ही नहीं है, तो आप अपने स्टेटमेंट पे रहेगा। हमारा बोलने का मतलब क्या है? मैं बोलने का मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट सुनो पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ। आते ही आपने जो सूरह मुजादिला की आयत पेश की उससे आपने ये कहा कि 3 से ज्यादा चौथे में 5वां जो आयत जो भी हो आयत करीमा में, इससे कहा कि एक ज्यादा जानते मानेंगे तो कुरान के खिलाफ, एक कम जानते हैं मानते तो भी कुरान के खिलाफ। और ये नबी की जिंदगी में नाजिल हुई तो जिंदगी में भी नहीं जानते थे, अब तो वैसे भी नहीं जानते, ये कहा। अब ये कह रहे हैं कि वही के बाद जानते हैं और विसाल के बाद हमें पता ही नहीं। तो पता ही नहीं तो पहले क्यों कहा कि नहीं जानते थे? आपका खुद का स्टेटमेंट एक पहले कहा हयात में नहीं जानते थे, ये तो कह भाई आप रिकॉर्डिंग इनको एक क्लिप दे देना। इन्होंने पहले क्या कहा अब क्या कहा? मेरे भाई पहले एक स्टेटमेंट पे रहो। अच्छा चलो उस बात को एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। अभी भी कब्र शरीफ में नबी नहीं सुनने पर एक दलील आपने पेश नहीं की। आपने 1 घंटा तकरीबन यहाँ पेश कर दिया, अभी भी वो आयत नहीं पेश की कि जिससे साबित हो कि नबी विसाल के बाद नहीं सुन सकते। अभी भी पेश करो। अभी वो आयत में ले जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास 3 आदमी चुपके से बात करें मदीने नबी की कब्र के पास, तो वो आयत वहाँ भी एप्लीकेबल है। कौन सी? कि 3 सरगोशी कर रहे हैं तो अल्लाह सुन रहा है। और एक मिनट कुरान में है कि नबी के विसाल के बाद 3 आदमी, नबी की जिंदगी में कुरान नाजिल हो चुका तो कुरान के बाद बोल रहा हूँ। अरे नबी की जिंदगी में कुरान नाजिल हो चुका तो विसाल के बाद की क्यों बात कर रहे हो? देखिए मुझे ये जवाब मांग रहे, मैं तो हयात में नहीं सुनते थे, जबकि 2-4 किलोमीटर दूर होंगे अल्लाह के नबी आ गए ना। और आप तो हयात में नहीं सुनते आप तो वैसे भी नहीं सुन सकते, 3-4 किलोमीटर भी नहीं सुन सकते, ये कहा ना। तो अब क्यों कहा कि हमें उसका शऊर ही नहीं? शऊर नहीं, अरे अजीब सी बात जिंदा है, सुनने की बात हो रही है। एक बात ये कहते हो कि नहीं जानते, 3-4 किलोमीटर के फासले पर नहीं जानते थे। दूसरी बात ये कहते हो कि अल्लाह के बताने पर सब कुछ जानते हैं। तो एक स्टेटमेंट रहो ना यार, जो अल्लाह बताया तो अल्लाह ने क्या क्या बताया कुरान में फरमाया ना। वही तो मैंने कहा, कुरान में हर चीज का जिक्र है। और कुरान में इतनी चीजों, कुरान में हर चीज का जिक्र है कि इसकी तफसीर करने के लिए 7 समंदर को सियाही बना लो, जमीन के तमाम दरख्तों को कलम बना लो, फिर भी खत्म नहीं होगी। उस कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया और तमाम गैब का इल्म मा कान व मा यकुन, जो कुछ होने का था जो कुछ होने वाला सब सिखा दिया। जब सब सिखा दिया आप कैसे इनकार करते हो कि ये नहीं जानते थे वो नहीं जानते थे? अच्छा अल्लमहुल बयान में जो कुछ हो चुका जो कुछ होने वाला है, आपका एतराज है कि कयामत का इल्म सरकार नहीं जानती। ठीक है, हमारा ये है कि सरकार कयामत का इल्म अल्लाह ने दिया था लेकिन लोगों से छुपाने को हुक्म था।
नबी को क़यामत का इल्म था। अब दलील सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मा काना व मा यकुन, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, इल्म अता फरमा दिया। नबी ने भी फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सबको देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली। अब मुझे बताइए क़यामत के होने वालों में बच्चा कब पैदा होगा, होने वाला है कि नहीं? बारिश कब होगी, होने वाला है कि नहीं? कौन कब मरेगा, होने वाला है कि नहीं? होने वाली जितनी चीजें हो गई, अब बाकी क्या रहा? क्या रहा? होने की तमाम चीजें हो गई, अब तो क़यामत बाकी है। तो जब नबी जानते हैं जो कुछ होने वाला है, मैं जानता हूँ होने की सब हो गई, तो क़यामत नेक्स्ट है, तो क़यामत का इल्म है तभी तो। समझे मेरी बात? होने की तमाम चीजें जानते हैं और तमाम चीजें होने वाली ऑकर्ड हो गई, व्हाट इज नेक्स्ट? दुनिया का खत्म। तो नबी वो जानते हैं। इसी के मुतालिक एक और बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातें बता दी है अल्लाह ने। बता दी, बिल्कुल बता दी। तमाम पैगंबर कितने आए, सब कुछ बता दिया। तमाम पैगंबरों के अहवाल सब बता दिया। यानी इसमें 25 या 26 पैगंबरों का जिक्र है, और आए तो कई आए पैगंबर आए, हदीसों में आता है। वही तो मैं कहता हूँ, कितने पैगंबर आए? करीब तकरीबन 1.25 लाख। हाँ, तो ये सबके पैगंबरों के अहवाल अल्लाह के नबी को पता है, बिल्कुल पता, बता दिए। बिल्कुल। देखिए कुरान की आयत देखिए, वही मैं पढ़ा हूँ, ये सब इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। तुम तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो चीजें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है, या तुम्हें पहले ही वफात दें, बहरहाल उन्हें हमारी तरफ फिरना है। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी का अहवाल तुमसे बयान फरमाया और किसी का अहवाल न बयान फरमाया। ठीक है, तो पता है नबी को न बयान फरमाया अहवाल पैगंबरों का। अच्छा ठीक है, कि जिसका अहवाल बयान फरमाया अल्लाह के नबी जानते। हाँ। यहाँ है कुछ पैगंबरों का हमने आपको वाकया सुनाया और कुछ का न सुनाया, मेरे भाई। और किसी रसूल की को नहीं पहुँचता कि कोई निशानी ले आए बगैर खुदा के हुक्म के। ठीक है। तो अब यहाँ ये बात है कि पैगंबरों के अहवाल अल्लाह बोल रहे हैं, हमने आपको बात पैगंबरों का किस्सा नहीं सुनाया। कुरान में जितने पैगंबरों का जिक्र किया उसके हवाल बताए। बता दी। तो जो कुरान में जिक्र नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि उसके अलावा दूसरे नबियों का जिक्र नबी नहीं जानते, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह नहीं सिखाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं आपको बात पैगंबरों का अहवाल बताया और बात का अहवाल हमने आपको यानी कुरान शरीफ में जितने अंबिया कराम का जिक्र मौजूद है वो अहवाल आपको बता दिए, यानी कुरान की शक्ल में। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं जानते थे, तो अल्लाह ने जो फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब क्या होगा? अल्लाह ने ये फरमाया कि कुरान की तफसीर में सातों समंदर को मतलब स्याही बना लो, यानी हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र, खुश्क तर का जिक्र, तो छोटी बड़ी में नबी का जिक्र भी आ गया कि नहीं? हाँ, तो जो बताया खुश्क तर में हर चीज का नबी का अल्लाह का इल्म बता रहा है। इसका मतलब ये कि वाज़ेह तौर पे कुरान की आयतों से कुछ नबियों के हवाले बताए और बाज आपको इल्हामी तौर पे बता दिए गए, जो बता दिए, बिल्कुल बता दिए। अल्लाह ये बोल रहे हैं कि बात तो नहीं बताया। अरे भाई कुरान की शक्ल में जो कुछ नहीं, बातों को जो कुछ, अरे मेरे भाई वो भी सीधी बात है, जो कुछ नहीं जानते। बहुत वक्त करो नमाज के लिए, बहुत वक्त आप जा रहे हैं, जाइए। जो कुछ नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो कुछ आप नहीं जानते हमने सिखा दिया, क्या करोगे? उसका मतलब क्या दिखा दिया? कुछ नहीं दिखाया आपने। आप ये कुरान को मानते हैं, आला हज़रत को मानते हैं, तो सुन्नी बन जाओ तो खत्म।